गुड मॉर्निंग सर. सर आवाज नाही येते. गुड मॉर्निंग मॅडम. आला आवाज माझा? हो आला आला. ओके, 5 मिनिटात स्टार्ट करू सर. स्वप्नील सर जॉईन होतात. येस मॅडम, काय प्रॉब्लेम नाही. येस येस. गुड मॉर्निंग मॅडम. गुड मॉर्निंग. मौसम. गुड मॉर्निंग सर. आम्ही चांगला प्रोग्राम घेतलाय. आता जरा गरज होती ना याची. येस, एवढे ऍज अ मेंबर म्हणून देखील मी अटेंड करणार आहे. ऍक्च्युली रेजिस्ट्रेशन 100च्या वर झालेत ना मॅडम? हो मॅडम, 115 आहेत. अच्छा.
स्वप्नील सर झालेत का जॉईन? स्वप्नील सर 2 मिनिटात जॉईन होतात. ओके. येस. Good morning, sir. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग देवेन. गुड मॉर्निंग देवेन. मॅडम एक ग्रुप वरती रिमाइंडर देऊन टाकता का? हो हो. मी ऍक्च्युली मेसेज पण पाठवलाय 7:30चा आणि 7 o'clockला मेल पण गेलाय. करता येईल Okay. मुलांना. येस. रेकॉर्डिंग बंद आहे ना आता? For this virtual seminar on changes in GSTR 3B and recent important changes in GST, in which our guest speaker today is CS Swapnil Munot, sir. I would like to welcome you, sir. We are glad to have you. After that, I would like to welcome CA Rishikesh Wangade, sir, Chairman of Satara branch of Vikasa, and CA Mousmi Shah ma'am, Chairperson of Pune Vikasa. This seminar is organized by Pune branch of Vikasa of ICI jointly with Satara branch of Vikasa of ICI. So I would like to hand over to CA Rishikesh Wangade, sir, for the opening remarks. Thank you, Devan. First of all, I would like to welcome CA Swapnil Munot, sir. He is the jewel of CA profession, and under his leadership, बहुत सारे initiatives and बहुत सारे reforms लाए गए हैं. Some of which like GST amnesty scheme वगैरह जो है, that is because of effort of Swapnil ji. Thank you, Mosmi ma'am, for organizing such a fantastic program at a very appropriate time. इसकी बहुत जरूरत थी. And I warmly welcome all the participants who have registered for this webinar and attending this session. So GSTR 3B is very critical role, is very critical aspect in CA professionals life. It is very important for client as well as us. And there are recently some changes have been made. तो वो जानना बहुत ही important है. And Swapnil Munot sir there is no other person who can guide us and tell us these changes very effectively other than Swapnil ji. So we are really privileged to have such a fantastic person with us. And I once again thanks Mosmi ma'am, Pune Vikasa, for organizing this session at very appropriate time. I would also like to add that Satara Vikasa jointly with Pune Vikasa has organized crash course on CF intermediate direct access. So if any students have wishes, if they can enroll for those crash course. It has been very effective, and many other subjects will be also lined up. So take benefit of these sessions. With this short intro, I hand over back to Devan. Thank you so much, sir. Next, I'll hand over to Mr. Taha Merchant. He's treasurer of Pune Vikasa for introduction of CS Swapnil Munot, sir. Hello everyone. Good morning. Good morning to Swapnil sir. Good morning, Moshe ma'am, and good morning, Rishikesh sir. So as we all know, that as the sun and moon shine bright in the sky, we have stars in our CA fraternity who shines bright and are a source of knowledge and a symbol of inspiration. So today we all have CA Swapnil Munot sir. Majority of us already know about sir, but still I will give a little brief overview. So as we all know, and also the sir said that sir is a jewel in GST. The sir is a practicing chartered accountant, and he has experience in indirect tax and foreign trade policies.
sir has also authored a book which is titled as Handbook on GST for Beginners. With this, sir has also conducted over 300 plus seminars on indirect taxes with various bodies like Bombay Chambers of Commerce and Industry, Federation of Indian Export Organizations, ICAI, Ministry of MSME, and various other organizations as well. Sir is always instrumental and sir is always active in obtaining circulars, notifications from Central Board of Indirect Taxes. Further, sir has also got an opportunity to interact on GST with various eminent personalities like the Honorable Finance Minister Srimati Nirmala Sitharamanji and State Finance Shri Anurag Thakurji. Also, sir has been awarded as a GST icon, and sir is also a member of CGST LNR committee of MTPA and a member of taxation committee. He is also a recognized faculty of GST by ICAI. And lastly, sir has also been interviewed by various news channels like CNBC, Z Business TV, etc. So with this, I would like to end the intro of CS Swapnil Munot, sir. Thank you so much, Taha. As we know, we are so privileged to have such a faculty or such a person to guide us on these changes in GST. I'll just like to hand over to CS Swapnil Munot, sir. Sir, all over to you. Good morning, everyone. Our today's topic is practical one, but we are going to interact virtually. Even though participants are very less, but it's like Super 30 team as of now. I will request everyone, please be active while in the session chat box, so that ये session जो है ये online है तो हम उसको थोड़ा सा live feeling में convert कर सके. Friends, in GST, as most of you are student over here, you must be thinking कि मैं CA कब बन जाऊंगा और फिर क्या मतलब कब होगा, कब क्लियर होगा, कितने टाइम लगेगा वगैरह. But I request or I recommend you that you also think that आप CA बन गए और उसके आगे क्या करोगे, आप किस तरह से आपका करियर करोगे, किस तरह से आप स्पीड जो डिमांड किया जा रहा है टैक्सेशन और एनी अदर फील्ड उससे कोप अप करोगे. I see a big gap when it comes to GST. जो लॉ में चेंजेस हो रहे हैं एंड जो ग्रास रूट लेवल पे हम प्रोफेशनल लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसमें काफी अंतर है. इसका एक रीजन है, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम इट इज एन अपॉर्चुनिटी. नाउ आवर टुडेस टॉपिक, थैंक्स टू मौसमी मैम, पुणे ब्रांच चेयरमैन पठारे सर, राजेश अग्रवाल सर, ऋषिकेश जी, देन देवेन एंड ताहा जी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. एंड ऑल्सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप सुबह 8 बजे आपके सब क्लास वगैरह सब छोड़ के मुझे सुनने में आए हो. बट इट्स अ रियली अपॉर्चुनिटी. आज की तारीख में भी 3B के चेंजेस, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ प्रोफेशनल्स आर अवेयर कि क्या चेंजेस हुए हैं. जब जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी वहां पे अपॉर्चुनिटी भी है. हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम चीज को यूज नहीं कर पा रहे. ये आपके लिए, सब स्टूडेंट लोगों के लिए भी, जब आप सीए बनोगे तब आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. और जीएसटी अभी भी स्टेबल नहीं है. यू मस्ट बी थिंकिंग हम सीए बनने के बाद क्या करेंगे. जैसे मैं जब सीए कर रहा था तब मैंने भी डिसाइड किया था कि आई विल गो इनटू जीएसटी व्हेन इन 2008-9, तभी मैंने डिसाइड किया था कि आई विल गो इनटू जीएसटी बिकॉज़ एक नई फील्ड है. तो वो सिनेरियो जब अपॉर्चुनिटी उस टाइम पे ओपन थी तो आज भी है, क्योंकि आज भी बहुत सारे जीएसटी में चेंजेस आते हैं. जब भी जीएसटी में कोई खामोशी होती है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कोई ना कोई बड़ा भी साइक्लोन या कोई सुनामी आने वाली है. और ऐसे 3B के चेंजेस में हुआ है. 3B के चेंजेस लगते बहुत सिंपल है, नहीं कुछ नहीं, थोड़ा सा एक दो हेडिंग में चेंज हुआ है, बट इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट इन द कंपनी. आप ये मेरा सेशन सुन के अगर कोई कंपनी में उनको बताओगे ना 3B के चेंजेस ऐसे हुए वैसे हुए, वो कंपनी के टैक्सेशन हेड वगैरह भी आपको सुनने को आएगी. एंड देयर इज अ बिग गैप इन व्हाट इज रिक्वायर्ड अंडर जीएसटी फ्रॉम प्रोफेशनल्स and what is actually happening. This gap is not because professionals are not performing well, but gap is because huge changes are happening. There is a good opportunity to read and to implement it, to provide consultation, good advisory, but at the same time it is not happening because of too many changes. So आप सब स्टूडेंट इसके ऊपर भी फोकस कर सकते हो. Now to start with our today's topic,
So how many of you are filing GST returns? Just please reply in the chat box. I hope you are filing the GST returns. Yes, sir. Yes, so please reply. I request all participants. Is the chat box is on? Yes, sir. करते होगे तो प्लीज रिप्लाई कर। मैं कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने वाला हूँ, सो मुझे अंडरस्टैंडिंग आएगी कि आप लोगों को GSTR 3B वगैरह मालूम है। यस, व्हाट अबाउट अदर्स स्टूडेंट्स? आप ऑफिस में करते होगे ना? आप कोई दूसरा रिप्लाई नहीं, चैट दूसरे कोई मैसेज कर रहा है इसका इंतजार मत करो। इफ यू आर एबल फाइलिंग द GSTR 3B, प्लीज रिप्लाई। और इतनी खासी अपॉर्चुनिटी हमें 3B समझने की किसी को नहीं आ रहा है, इसके बारे में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है। बताओ तो सही, आपको आता है या नहीं आता है 3B? नॉट न्यू चेंजेस, आई एम सेइंग ओल्ड। आर यू फाइलिंग? कभी फाइल किया ऑफिस में GSTR 3B? एक ने भी नहीं? Sir, we are getting a reply that chat is disabled. Chat disabled आ रहा है. If you can see in question answers. हाँ हाँ, अच्छा Shrutika क्वेश्चन is saying yes. Pratik is saying chat disabled. 2-3 people are saying chat disabled. Where is the question answer option? हाँ, Q&A. Okay, right. Chat disabled. Okay, question answer में है देवेन, श्रुतिका, yes. Chat. Okay. So friends, it's really opportunity. मैं आपको बताता हूँ कि मतलब पूछो मत, इतनी अपॉर्चुनिटी GST में है और आने वाले 5-10 साल रहेगी। आप जो भी चेंजेस आते हैं उसका नोटिफिकेशन पढ़ो, सर्कुलर पढ़ो, डाइजेस्ट करो उस चेंजेस को। ऑथर भी इस चीज को आज वो चेंजेस बनाना, समझना, उसको वापस बुक में लिखना नहीं कर पा रहे टाइम टू टाइम बेसिस, बिकॉज बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट। आप अभी से आपके फ्यूचर का रोड मैप बनाइए सो दैट आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिल पाएगा। यस, सो 3B में जो चेंजेस हुए, और ऐसे GST बहुत सारे चेंजेस होते हैं, इसकी वजह से जो हम चाहते हैं GST सिंपल हो, वो आज कॉम्प्लिकेटेड है। वेरियस मतलब सबके दिमाग खराब है क्या, GST में छोटे छोटे मिस्टेक्स, लाखों करोड़ के आज लोगों को नोटिस आते हैं। उसके साथ में और एक GST आने के बाद इशू हुआ है कि बहुत सारा GST फ्रॉड डिटेक्ट हो रहा है। लगभग 1.5 लाख करोड़ का GST फ्रॉड डिटेक्ट हो रहा है, बहुत सारे नोटिफिकेशन। सो ये सब अनस्टेबल GST है। और गवर्नमेंट जो चेंजेस करना गवर्नमेंट जो मेजर्स ले रही है, जैसे नील रिटर्न फाइलिंग थ्रू SMS, ये हमारे लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं नई टैक्स पेयर के लिए, बट उनके हिसाब से बहुत बड़े रिफॉर्म्स है। सो ये बहुत बड़ा गैप, यही रीजन है कि GST में अनस्टेबिलिटी है, मिस्टेक ज्यादा हो रहे हैं। एक तो बहुत सारे चेंजेस, दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी, तीसरा हम जो चाहते हैं और गवर्नमेंट जो कर रही है उसमें थोड़ा काफी अंतर है। सो चेंजेस इन GSTR 3B डिस्क्लोजर, पर्पसफुली मैंने ये इमेज लगाई है। जैसे हम 12th के साइंस के मैथ्स में या कॉमर्स के मैथ्स में होता है, शायद CA के मैथ्स में भी होता है, साइन कॉस थीटा वगैरह वगैरह। तो अभी ITC एक नया चैप्टर ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि ITC पहले समझना, ITC किसका मिलता है किसका नहीं मिलता है, उसका ड्यू डेट, बहुत सारे मिस्टेक्स, किसका नहीं मिलता है, फिर रूल 42-43 का रिवर्सल। उसके बाद GSTR 2B 1-2 साल पहले पिक्चर में आया, फिर बताया गया आपको मंथली रिकंसिलेशन करना है। हम सब लोग पिछले 5-6 महीने से रिकंसिलेशन कर रहे हैं। एंड अभी नया है 3B में भी आपको ऊपर ऐड करना, नीचे लेस करना, इधर दिखाओ उधर दिखाओ, ये दिखाओ वगैरह वगैरह, प्लस माइनस। सो इट इज द वेरी कॉम्प्लिकेटेड लाइक अ मैथ्स कैलकुलेशन क्वेश्चन। नाउ इसके रिलेटेड जो चेंजेस आए वो कहाँ पे दिए गए हैं? चेंजेस दिए गए नोटिफिकेशन नंबर 14 में, जो कि 5 जुलाई को आया, और सर्कुलर नंबर 170। फ्रेंड्स, हमने हमेशा जो चेंजेस करने वाले डॉक्यूमेंट है उसको हमेशा देखना चाहिए, वो हमें कॉन्फिडेंस देता है इंटरप्रेट करने के लिए। सो नोटिफिकेशन नंबर 14 ने क्या किया, जो GSTR 3B का फॉर्म था उसमें अमेंडमेंट लाया, और सर्कुलर नंबर 170 ने किया क्या, सर्कुलर नंबर 170 ने बोला कि ये चेंजेस जो लाए हम क्यों ला रहे हैं, ये क्या पर्पज है, क्या टैक्स पेयर ने करना चाहिए, उसमें एक्सप्लेन किया गया है। और मैं बस दोनों को समझ के आपके साथ बात कर रहा हूँ, कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अभी चेंजेस क्यों लाए गए, क्या जरूरत थी इसकी? तो गवर्नमेंट ने सर्कुलर में बताया कि कुछ लोग अलग अलग तरह के रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो ऑफिसर लोगों को भी शायद दिक्कत आ रही है कि कोई लोग इधर दिखाते, कोई इधर दिखाता, कोई नहीं दिखाता।
तो हम चाहते हैं कि एक यूनानिमिटी हो, एक सेम पैटर्न से रिपोर्टिंग किया जाए 3B में, एक यूनिमस अप्रोच हो रिपोर्टिंग में, आईटी से रिलेटेड और थोड़ा बहुत सेल्स के रिलेटेड। तो उसके लिए मेनली उन्होंने ये चेंजेस किए हैं। आप अगर देखोगे लास्ट बुलेट पॉइंट, तो ये सर्कुलर का ही मैंने कॉपी किया है। डिफरेंट प्रैक्टिसेस आर बीइंग फॉलोड टू रिपोर्ट द इनएलिजिबल आईटीसी। जो इनएलिजिबल आईटीसी था उसमें डिफरेंट प्रैक्टिसेस हो रही थी, इसके लिए बेसिकली चेंजेस है। बट ये चेंजेस जिस तरह से लाए हैं उन्होंने ये चीज को और कॉम्प्लिकेट कर दिया है, और मेरे हिसाब से अभी तो और डिफरेंसेस हो गए इन रिपोर्टिंग ऑफ द टैक्स पेयर और प्रोफेशनल की तरफ से। अभी हम थोड़ा सा 3B का फॉर्म समझते हैं। आप सब लोग 3B जो फाइल करते हो उनको थोड़ा बहुत आंखों के सामने होगा ही होगा, बट जस्ट हम समराइज तरह से समझते हैं क्या टेबल से। सबसे पहला टेबल आता है, हमें हमारे आउटवर्ड सप्लाई और आरसीएम लायबिलिटी बतानी पड़ती है, करेक्ट? आई होप आप लोगों ने ये टेबल देखा होगा पहला 3.1, जहां पे हम आउटवर्ड सप्लाई और आरसीएम लायबिलिटी रिपोर्ट करते हैं। यस, 3.1 किया है आपने रिपोर्ट उसमें डिटेल्स? तो बालाजी सेइंग यस, व्हाट अबाउट अदर्स? चार्ट में है या किस में है अभी? प्लीज गिव रिप्लाई इन क्वेश्चन आंसर बॉक्स। श्वेता इज सेइंग यस, ओके, ठीक है। फ्रेंड्स प्लीज गिव रिप्लाई, ऐसा मत सोचो कि बाकी लोग क्या कहेंगे यार मुझे नहीं आता है। प्लीज बी फ्रैंक, जो आपके यहाँ सिचुएशन है 90% प्रोफेशनल की भी वही सिचुएशन है। यस, एनोनिमस अटेंडी, यस। तो 3.1 में हम क्या रिपोर्ट करते हैं? जीएसटी 3B के फॉर्म में सप्लाई और आरसीएम की डिटेल्स। अब ये 3.1.1 एक नया टेबल ज्वाइन हुआ है। 3.1.1 क्या है ये? आरसीएम की लायबिलिटी होती है इकोनॉमिक कॉमर्स ऑपरेटर के केस में, ई कॉमर्स ऑपरेटर के केस में। कुछ केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर को बोला गया है कि आपको जीएसटी रिवर्स चार्ज में आपको फाइल करना है। जैसे मैं हूं और ऋषिकेश है और देवेन है, तो मैं एक सप्लायर हूं, ऋषिकेश इज ई कॉमर्स ऑपरेटर एंड देवेन इज अ रिसिपिएंट। तो यहाँ पे सर्विस मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, कुछ जो भी सर्विस होंगी सेक्शन 595 के अंडर। सो आई एम अ सप्लायर ऑफ सर्विसेज, ऋषिकेश इज जस्ट एन ई कॉमर्स ऑपरेटर लाइक अमेजॉन, लाइक ओला, लाइक स्विगी, इस तरह से, एंड रिसिपिएंट इज देवेन। तो नॉर्मली लायबिलिटी मेरी होती है या रिसिपिएंट की होती है, बट 95 के अंडर ई कॉमर्स ऑपरेटर की लायबिलिटी होती है। ई कॉमर्स ऑपरेटर बेचारा बीच वाला आदमी होता है, वो तो छोटा मोटा कमीशन उसका लेता है, बट गवर्नमेंट बोलता है नहीं, इस केसेस में रिवर्स ऐसा मानेंगे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर ने सर्विस प्रोवाइड किया, वो जीएसटी लायबिलिटी इसका पे करेगा। अभी इसके लिए खास अलग से टेबल आया है दोस्तों। क्यों आया है? हमारे जैसे आगे गवर्नमेंट ज्यादा सोचती है, उनके टैक्स ऑगमेंटेशन की, टैक्स इंक्रीज करने की टीम होती है जो इसके ऊपर स्टडी करती है कि कैसे हम टैक्स बेस को बढ़ाया जाए। तो आज की तारीख में हम देखेंगे पिछले 1-2 साल में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा यूसेज हो गया है। तो गवर्नमेंट को लगा नहीं, इसका रिपोर्टिंग ठीक ठाक से होना चाहिए, इसलिए 3.1.1 जो सेकंड टेबल आपको सामने दिख रहा है ग्रे कलर में, वो ऐड हुआ है 3B में। सो आपके पास अगर ऐसा कोई ही क्लाइंट है, ऐसा कोई टैक्स पेयर है जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म थ्रू सेल करता है, अमेजॉन के केस में नहीं आता, ये सिर्फ सर्विस को ही है जो 95 के अंडर आते हैं। वो कौन से है वो हम आगे देखेंगे। जैसे कि रेस्टोरेंट की सर्विस है जो जिसमें स्विगी वगैरह रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करते हैं, तो वो जो सर्विसेज है उनके लिए 95 सेक्शन एप्लीकेबल है, और उसी केसेस में आपको 3.1.1 में सेल्स के डिटेल देने हैं। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? Yes, sir. 3.2 ये टेबल ऐसा है जिसका कोई रिपोर्टिंग नहीं करता है। ये अदर डिस्क्लोजर ऑफ सप्लाई है, जहां पे बताया गया है कि आपने जो 3.1 में दिया है उसका ही हमें वापस एक बार डिस्क्लोजर दो। आपने अनरजिस्टर को कितना किया है, आपने कंपोजिशन वाले को कितना किया है, आपने यूआईएन होल्डर को कब किया है। ये यूआईएन होल्डर जो होता है ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, या जो मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस वगैरह कुछ बोला जाता है, ये सिर्फ सिलेबस में ही आता है, प्रैक्टिकली
शायद ही बहुत कम प्रोफेशनल पास से काम आता होगा, 20-30 पूरे 40 लोगों को होगा मेरे हिसाब से। मैंने तो अभी तक बहुत रेयर देखा है ये चीज, बट ठीक है, आपके सिलेबस में भी हमेशा आता है यूएन होल्डर वगैरह वगैरह। सो 3.2 में जो डिटेल्स आएंगे वो आते हैं जो आपने ऑलरेडी रिपोर्ट किए 3.1 या 3.11 में, उसमें से आपने जो भी अदर स्टेट में सप्लाई किया है, अदर स्टेट में अनरजिस्टर्ड पर्सन को या फिर कंपोजिशन डीलर को, तो उसके डिटेल्स आपको 3 में देने। इट इज जस्ट अ डिस्क्लोजर पर्पस, बिकॉज ऑफ दैट ये सिर्फ डिस्क्लोजर पर्पस के लिए था, इट इज मोस्टली इग्नोर्ड, नो वन इज फाइलिंग द डिटेल्स। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस 3.2? 3.2 से कोई लायबिलिटी तो क्रिएट होती नहीं है, तो ये क्यों दिया गया है, क्यों मांगती है गवर्नमेंट? फ्रेंड्स, ये इसलिए मांगती है, गवर्नमेंट को भी उनके पेमेंट जो होते हैं टैक्स कलेक्शन के, सेटल करने पड़ते हैं, और उनके पास उनके लिए उसके लिए उनके पास डिटेल्स होनी चाहिए कि कौन से प्लेस ऑफ सप्लाई के रिलेटेड ये सप्लाई है, कौन से स्टेट का सप्लाई है। सो अनरजिस्टर्ड केस में, कंपोजिशन डीलर केस में, यूएन होल्डर के केस में अगर आप कोई सप्लाई करते हो तो गवर्नमेंट आपसे बोलती है कि 3.2 में अलग से उसका प्लेस ऑफ सप्लाई वाइज डिटेल दीजिए, सो दैट हमें जो भी हर एक स्टेट को पैसा देना पड़ता है। हम सुनते हैं कि कोई गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि हमारा 5,000 10,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट से आना बाकी है, तो वो जो कैलकुलेशन किया जाता है ना, उसमें ये 3.2 का एक इंपॉर्टेंट रोल है कि बाबा जो भी अनरजिस्टर्ड सप्लाई हो रहा है, गवर्नमेंट के ठीक से डिटेल्स नहीं होती कि कौन से स्टेट को गया है, तो गवर्नमेंट इसलिए आपको बोल रही है कि टेबल 3.2 में उन्होंने बकायदा इस सर्कुलर में बोला गया है कि 3.2 को हमने ऑब्जर्व किया है कि पीपल आर नॉट फाइलिंग दिस 3.2 टेबल, एंड देयरफॉर इट इज बीन एडवाइजेबल कि आप ये फाइल करो 3.2। आई होप 3.2 क्लियर है। यस, मोस्ट ऑफ द या 99% प्रैक्टिशनर को 3.2 का पर्पस मालूम नहीं है। हमें कोई भी चीज का पर्पस मालूम पड़ता है ना, तो वो चीज समझ में आती है। 3.2 क्यों गवर्नमेंट मांग रही है अलग से, उसका पर्पस यही है कि गवर्नमेंट वांट कि उनका जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का पेमेंट सेटलमेंट हो ना, तो वो ठीक से हो जाए, उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई लगता है, और प्लेस ऑफ सप्लाई उनको 3.2 से मिल जाएगा। जाओ आगे। यस, प्लीज रिप्लाई इन द क्वेश्चन आंसर बॉक्स। यस फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप ज्यादा इंटरेक्ट करिए। टॉपिक प्रैक्टिकल है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। मैं खुद 4-5 बार पढ़ा हूं तभी मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा है ये चाहते क्या है। चलो ठीक है। सो 3.1, 3.11 एंड 3.2 हमने डिस्कस किया, पूरा सप्लाई रिलेटेड है। अभी आते हैं टेबल 4 पे। टेबल 4 आईटीसी का है। ये सब लोग हम ऑफिस में फाइल करते हैं। सो बहुत सिंपल था, पहले मेरा अदर आईटीसी है उसको रिपोर्ट करो, इंपोर्ट वगैरह, आईएसडी, रिवर्स चार्ज वगैरह वगैरह, वो 4A में आता है। 4B में क्या आता था, रिवर्सल आता था। 4C में क्या है, नेट आईटीसी। जो 4C का जो 4C में जो अमाउंट आती है टेबल 4C में, वो अमाउंट मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाती है। वही अमाउंट मेरा एक्चुअल आईटीसी अवेल्ड होता है। और 4D जो है वो अदर आईटीसी इंफॉर्मेशन। तो हेडिंग तो ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम है, तो चेंजेस क्या हुआ है वो हम डिस्कस करेंगे। वापिस एक बार इस क्रोनोलॉजी को समझते हैं। 4A मतलब आईटीसी, मेरा जो आईटीसी में लेता हूँ अलग अलग टाइप का, इंपोर्ट, आरसीएम, अदर, वो 4A में आता है। 4B में आता है आईटीसी रिवर्सल। 4C में आता है नेट आईटीसी। जो मेरा नेट आईटीसी होगा वो मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगा, वही मेरा एक्चुअल आईटीसी अवेल्ड होगा, वही आईटीसी होगा जो मैंने लिया है, आईटीसी टेकन 4C वाला। और 4D है आईटीसी का अलग अदर इंफॉर्मेशन। So now we'll understand each and every table. Friends, अभी थोड़ा ज्यादा अटेंटिव रहिए क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए, और इसको इंप्लीमेंट करना भी। हमने ई कॉमर्स के बारे में डिस्कशन किया था, तो ये 3.1 का टेबल है जो इंसर्ट किया है। इसमें भी इन्होंने दो या बाद में भी देख सकते हो, जो मैंने आपको आरसीएम के बारे में बताया था कि किस केस में 3.1.1 एप्लीकेबल होता है, वो इस सर्विसेज के केस में होता है, ट्रांसपोर्टेशन, पैसेंजर, होटल अकोमोडेशन, हाउसकीपिंग एंड रेस्टोरेंट। ये इस नोटिफिकेशन में दिया है, नोटिफिकेशन नंबर 17 में। तो इसी केसेस में ही सिर्फ 3.1.1 एप्लीकेबल होगा। आपको प्रेजेंटेशन बाद में मिल जाएगा, सो दैट डोंट नीड टू राइट इट, बट जस्ट
ये 4 चीजों में लगेगा, इतना ध्यान रखना 3.1.1। और जिस टेबल के बारे में बात कर रहा था 3.2 की, जिसकी कोई बहुत सारे टैक्स पर इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, वो है 3.2 वाला ये टेबल। अनरजिस्टर्ड को सप्लाई, यहाँ पे आप देखोगे तो सेकंड कॉलम प्लेस ऑफ सप्लाई, ये क्यों जरूरी है? बिकॉज गवर्नमेंट वांट डिटेल कि कौन से स्टेट में क्या टैक्स लायबिलिटी पे की जा रही है, कैसा है उसका सेटलमेंट, कैसा किया जाए, इसके लिए बेसिकली। नाउ टेबल 4A आईटीसी का हम जो डिस्कस कर रहे हैं, अभी टेबल 4A आपके आंखों के सामने लाइए, आप लोग ऑफिस में फिल करते होगे। उसमें आपको पूछा जाता है कि इंपोर्ट का आईटीसी, आईएसडी का आईटीसी, आरसीएम का आईटीसी, अदर आईटीसी, और शायद और एक मेरे हिसाब से फील्ड है, 5 फील्ड है 4A में, बराबर? इज इट करेक्ट? फोर ए बराबर, इतने ही फील्ड है ना? इसके अलावा कुछ है? इंपोर्ट होता है, आरसीएम होता है, इंपोर्ट, आईएसडी, अदर्स, और कुछ है इसमें? यस और नो? 4A? Am I going in a थोड़ा स्पीडी मोड है क्या? ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? प्लीज रिस्पॉन्स फ्रेंड्स। 4A टेबल जो आईटीसी का होता है, जहां पे हम अदर आईटीसी के डिटेल देते हैं कि आईटीसी हमने क्या लिया है ड्यूरिंग द मंथ, इंपोर्ट का, रिवर्स चार्ज का, अदर आईटीसी, आप लोगों ने ये देखा होगा? यस और नो? यस प्रतीक, रुपया सिंह यस, ओके, बालाजी, श्रेयस, ओके। ये 4 में से 3 लोग तो मेरे ऑफिस से ही है, बाकी लोग क्या है? बाकी लोग करते या नहीं करते 3B? हाँ अभी आया अब्दुल, श्री, ओके। अभी यहाँ पे हमें करना क्या है जो हम नहीं करते थे अभी तक? हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंटली हम इनएलिजिबल जो आईटीसी होता है सेक्शन 17(5) का, मतलब फूड का हमें क्रेडिट नहीं मिलता है, इंश्योरेंस, पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस होता है उसका क्रेडिट नहीं मिलता है, गिफ्ट का क्रेडिट नहीं मिलता है, कंस्ट्रक्शन का क्रेडिट नहीं नॉर्मली मिलता है, सैंपल का क्रेडिट नहीं मिलता है, तो हम इतने दिन तक वो क्रेडिट लेते ही नहीं थे, तो रिवर्सल का रिपोर्टिंग भी बहुत कम बार होता था। मतलब जो इलिजिबल आईटीसी है वो हम 4A में दिखाते ही नहीं थे, या मोस्ट टाइम कंपनीज, बड़े बड़े कंपनी जब वो इनवॉइस को बुक करते थे, तब अगर मान लो इलिजिबल आईटीसी था तो वो उसको रिकॉर्ड ही नहीं करते थे, क्योंकि मिलने वाला नहीं है, तो क्यों रिकॉर्ड करें हम इसको? बट अभी हमें वो लेना पड़ेगा, आपको अकाउंटिंग की प्रैक्टिस भी कंपनी में चेंज करनी पड़ेगी, आपको बोलना पड़ेगा कंपनी में कि जो भी इलिजिबल आईटी से हमने आपको पहले बताया था वो सब आप लो, और उसके अलग से और एक रिवर्सल एंट्री पास करो, बट लेना है आपको वो। सो टू बी में नॉर्मली आता क्या है, मेरा जो आईटीसी मिलेगा और नहीं मिलने वाला, छोट समराइज में समझते, फिर अलग कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कुछ होता ही नहीं है, समझ में नहीं आता है, कुछ कुछ शायद पिछले मंथ का होगा, अगले मंथ का होगा, जो भी कुछ है वो छोड़ देते हैं, हम 2 ही चीज समझते हैं फॉर टाइम बिंग, एक तो मेरा एलिजिबल और इनएलिजिबल होता है 2B मैनुअल चीजें, हमें पूरा का पूरा लेना है 4A में, इनएलिजिबल भी 3B में। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि हम जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटिंग एंट्री पास करते हैं, तो वो एंट्री पास करते हो, अगर वो अकाउंटेंट कंपनी का टैक्स पेयर का इतने दिन तक अगर उसको क्रेडिट लेता नहीं होगा, तो उसको बोलिए आप लीजिए वो क्रेडिट और अलग से रिवर्सल एंट्री पास कीजिए। लेने की वजह से क्या होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का टोटल क्रेडिट, 2B का टोटल क्रेडिट और 4A में आप जो दिखा रहे हो वो मैच रहेगा। आर यू गेटिंग दिस? आप आज के तारीख में मोस्ट ऑफ द टैक्स पेयर क्या कर रहे हो प्रोफेशनल लोग, कि हम लोग एलिजिबल लेते नहीं है, नई बुक्स में, नई 3B में, 4A में दिखाते हैं, तो दोनों जगह नहीं आता है, तो दोनों मैच होते थे, बट अभी गवर्नमेंट बोल रहा है 3B में आपको दिखाना है, 3B में 4A में दिखाना है, उसको ऐड करना, मतलब उसको आप अलग से
निकालो मत बाहर, उसको रहने दो 4A में, इसलिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी इनएलिजिबल आईटीसी लीजिए। आई होप आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट 4A का? यस, राइट। तो अभी ये हमें समझाना चाहिए कंपनीज को, और आप अगर आप ऐसा मेरे से सेशन लोगे तो उनको लगेगा यार क्या बहुत होशियार है यार ये लड़का लड़की। शायद आप भी सेशन ले सकते हो सी लोगों के लिए, बहुत सारे सी लोगों को भी अभी आज की तारीख में मालूम नहीं 3B के चेंजेस ठीक से। सो 4A में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो हमारे अकाउंटिंग में भी इंपैक्ट करने वाला है कि आप इनएलिजिबल आईटीसी लीजिए, बुक्स में भी लीजिए, ये रिकमेंड रहेगा। 3B में तो लेना ही लेना है, 3B में लेंगे, 4A में दिखाएंगे तो बुक्स और रिटर्न मैच होने के लिए बुक्स में भी लेंगे, सो दैट 4A और बुक्स मैच होगा। भी लाने का पर्पज क्या है? गवर्नमेंट चाहती है कि 2B में हमारा जो पूरा 2B आ रहा है ड्यूरिंग द मंथ का, वो 2B आपके 4A के साथ मैच होना चाहिए। मतलब हमारे ऑफिसर को लगे हाँ 2B 4A मैच, तो हमें लगेगा ठीक है सब आपका, फिर आप जो रिवर्सल दिखाओगे अलग से दिखाएंगे, हम चेक करेंगे। सो 4A में हमें पूरा क्रेडिट दिखाना है, इनएलिजिबल हो एलिजिबल हो पूरा। मैं और डिटेल में बाद में आता हूँ, पहले वापस पूरा एक बार टेबल समझ लेते हैं 4A 4B 4CD, और फिर हम आप छोटे एग्जांपल्स भी देखेंगे साथ में। अभी 4B की बात करते हैं। 4B में दो रोज है, एक रो है परमानेंट रिवर्सल की और एक रो है टेम्पररी रिवर्सल की। ये मेरे वर्ड्स है, परमानेंट और टेम्पररी, हमें याद रखना है। 4B1 जो है वो है परमानेंट आईटीसी रिवर्सल, मतलब ऐसा आईटीसी जो हमें रिवर्स करना है और जो वापिस कभी हम नहीं ले सकते, जैसे कि ब्लॉक्ड आईटीसी, वो ब्लॉक्ड है, हम नहीं ले सकते वापिस कभी, तो वो मेरा 4B1 में मैं माइनस करूंगा। जैसे फूड, हॉट फूड, सैंपल, गिफ्ट, कंस्ट्रक्शन, इंश्योरेंस, मोटर कार, ये जो भी आईटीसी ब्लॉक्ड है वो मुझे 4B1 में दिखाना है, क्योंकि परमानेंट रिवर्सल है। 4B1 परमानेंट रिवर्सल मुझे इनएलिजिबल केस फर्स्ट रो में दिखाना है। इनएलिजिबल आईटीसी का जो होता है सीरियल नंबर, उसके फर्स्ट रो में दिखाना है ब्लॉक क्रेडिट, उसके साथ में दिखाना है रूल 42, 43 और 38 का रिवर्सल। 38 का क्या होता है? बैंकिंग कंपनी केस में गवर्नमेंट बोलती है कि आपको हम कैलकुलेशन बताते हैं, इसके हिसाब से आप आईटीसी लोगे और आईटीसी रिवर्स करोगे, तो रूल 38 में बताया गया है। रूल 42, 43 क्या बोलता है? रूल 42, 43 बोलता है, देखिए आप अगर एग्जम्प्टेड बिजनेस में हो, टैक्सेबल बिजनेस में हो, दोनों है आपका या एक ही है, तो हम आपको क्रेडिट प्रोपोर्शनेट देंगे ओनली फॉर द टैक्सेबल सप्लाई, और जो आपका एग्जम्प्टेड सप्लाई रिलेटेड आईटीसी होगा वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि आपका आउटपुट एग्जम्प्ट है, तो हम आपका इनपुट का क्यों दे आपको, इसलिए उसका रिवर्सल जो है मैकेनिज्म है वो 42, 43 में बताया गया है, वो भी परमानेंट रिवर्सल होता है। सो ये चार चीजें आती है 4B1 में। 17(5) का रिवर्सल, रूल 38 मतलब बैंकिंग, रूल 42, 43 मतलब एग्जम्प्टेड सप्लाई रिलेटेड आईटीसी रिवर्सल। सो हम 4A में पूरा क्रेडिट लेंगे इंक्लूडिंग 17(5), ब्लॉक क्रेडिट सब कुछ 4A में लेंगे, और 4B1 में वो रिवर्स करेंगे। 4B1 में रिवर्सल की अमाउंट आएगी, वैसे बुक्स में भी कहीं ना कहीं टोटल या हर एक एंट्री का रिवर्सल आएगा, या फिर टोटल, जैसे एक भी क्लाइंट को पॉसिबल हो पूरे मंथ का सब रिवर्सल की अमाउंट, या हर एक लाइन आइटम वाइज रिवर्सल दिखा सकता है, बट दोनों में भी रिवर्सल आना जरूरी है, सो दैट बुक्स और रिटर्न्स मैच रहे। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज जीएसटी में, आईटीसी में ये हो रहा है कि बुक्स और आईटीसी हमेशा मैच रहे। जितनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है उतना ये डिफिकल्ट हो रहा है बुक्स और रिटर्न को मैच करे। दोस्तों मैंने एक्साइज के टाइम्स में देखा है बड़े बड़े कंपनियों, मतलब फॉर्च्यून 500 कंपनीज तक भी, जिनके बुक्स और रिटर्न का क्रेडिट, जैसे एक्साइज के सर्विस टैक्स का रिटर्न क्रेडिट और बुक का क्रेडिट में बहुत डिफरेंस होता था, और कभी रिकंसाइल ही नहीं हो पाता था, और कोई कर ही नहीं पा रहा था रिकंसाइल, इतना कॉम्प्लिकेटेड रिकंसिलेशन हो जाता था। जीएसटी में हम सब लोगों ने शुरुआत से मेहनत करते आ रहे कि मैच रहे, बट जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, आई एम वरीड कि ये डिफरेंसेस बुक्स में ना क्रिएट हो, बुक्स और रिटर्न के आईटी से रिलेटेड। सो इसलिए हमें कंपनीज को, टैक्स पेयर को भी अवेयर करना है कि सर ये ध्यान दीजिए, आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जरूरी है आपका बुक्स और रिटर्न मैच रहे, नहीं तो आपको 4-5 साल बाद नोटिस आएगी और गवर्नमेंट बोलेगा डिफरेंस है भरो, आपके बुक्स और इसमें है। सो 4B1 अंडरस्टूड।
it is a permanent reversal. Nita is saying, sir, request to explain the accounting entries related to ITs. Nita, what accounting entries, मतलब आप जब क्रेडिट लेते हो, जो नॉर्मली आप लेते हो, तो वही आपके 4A के लिए रहेगी, अलग से कोई एंट्री नहीं होगी. जैसे मान लो आपने परचेस किया है, परचेस अकाउंट डेबिट, CGST क्रेडिट अकाउंट डेबिट, SGST क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू XYZ पार्टी, अब जो भी पेमेंट आपका कैश वगैरह है उसको आपका ये क्रेडिट लेने की एंट्री हुई. रिवर्सल की एंट्री आप लगे तो वही एक्सपेंस को डेबिट कर सकते हैं और क्रेडिट जो लिया उसको क्रेडिट कर सकते हो. आई होप यू अंडरस्टूड द 4B1. अभी मैं आता हूं 4B. 4B1 को वापिस एक बार थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझते हैं. ये परमानेंट नेचर का रिवर्सल है. इसके अंदर 4 चीजें आती है, 42, 43, रूल 38 का रिवर्सल और सेक्शन 75 का रिवर्सल. ये आपको अलग से रिपोर्ट करना है 4B1 में. अभी आते हैं 4B2 का रिवर्सल. ये टेम्पररी रिवर्सल है. ये आपको वापस क्रेडिट मिल सकता है, आप ले सकते हो, बट इस मंथ में आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आपको 4B2 में दिखाना है. ऐसा कौन सा क्रेडिट होता है? एग्जाम्पल के लिए आपने अगर से GST एक्ट पढ़ा होगा तो आप या आपने लेक्चर्स कोई अटेंड किए होंगे या कहीं पे सुना होगा, तो क्रेडिट लेने के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि आपको गुड्स रिसीव्ड होने चाहिए. यू मस्ट हैव रिसीव्ड द गुड्स टू टेक द क्रेडिट. एग्जाम्पल, अगस्त 30 तारीख को मान लो यहाँ पे नीता है, तो नीता ने कुछ परचेस किया. नीता इज रजिस्टर्ड टैक्स पेयर. उन्होंने अगस्त 30 को कुछ परचेस किया. उनकी बड़ी कंपनी है, 100 करोड़ का टर्नओवर है कम से कम, और उनको वो इनवॉइस वगैरह सब मिल गया, 2B में भी क्रेडिट दिख रहा है, बट उनके पास वो गुड्स आए, मान लो आज आए. आज तारीख क्या है? आज 15 सितंबर है. क्योंकि उन्होंने दूर से लिया था, दिल्ली से लिए थे, महाराष्ट्र में टाइम लग गया, बारिश थी वगैरह वगैरह, तो 15 दिन लग गया उनके पास आते आते. क्या वो इस चीज का क्रेडिट ले सकते हैं अगस्त मंथ के? इसमें अगस्त मंथ के 2B में वो क्रेडिट दिख रहा है उनका, क्या वो ले सकते हैं? क्या वो ले सकती है? सॉरी, प्लीज रिप्लाई. यस, नो. प्रतीक इज सेइंग नो. मैंने आपको जैसे बताया, सेक्शन 16 बोलता है कि क्रेडिट कब मिल सकता है? जब आपको गुड्स और सर्विसेज मिले हो, रिसीव्ड हुए हो, तो ही आप क्रेडिट ले सकते हो. किसी का तो भी माइक ऑन है, प्लीज. यस, आई विल जस्ट रिपीट द एग्जांपल. नीता प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने 30 अगस्त को कुछ परचेस किया. उनके 2B में सप्लायर ने सब दिखाया है. वो गुड्स जो थे वो दिल्ली से परचेस किए थे, वो गुड्स उनको आज अभी मिले हैं, हमारा सेशन चालू है तब. क्या वो अगस्त मंथ में नीता प्राइवेट लिमिटेड उसका क्रेडिट ले सकती है? प्रतीक इज सेइंग नो. व्हाट अबाउट अदर्स? नो. नीता इज सेइंग नो. बालाजी सेइंग नो. वैभव नो. श्रेयस नो. तो ये क्रेडिट नहीं मिल सकता है, बट ये 2B में आ रहा है अगस्त मंथ के. तो क्या करना है? हमें 4A में तो लेना है. 4A में सब कुछ आएगा, मिलने वाला, न मिलने वाला, सब कुछ आएगा. ये क्रेडिट मुझे अगस्त में नहीं मिलने वाला है, बट सितंबर में जरूर मिलेगा. सितंबर मिलेगा. तो इसलिए अभी हमें ये अगस्त मंथ के, आप ध्यान से देख समझिए, मैं जब भी रिटर्न मंथ की बात कर रहा हूं, मुझे अगस्त मंथ में क्या करना है? 4A में ऐड करना है और 4B2 में माइनस करना है. अंडरस्टूड? 4B2 में माइनस करना है. आ रहा है समझ में? आपके शायद एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आएगा, और आया तो मुझे याद रखना कि मेरे वजह से आपको 2-4 मार्क मिल गए. अंडरस्टूड? यस, शुभम इज सेइंग शो इन 4A, रिवर्स इन 4B. परफेक्ट. 4B2 शुभम, मिस्टेक मत करना. 4B1B और 4B2B है, क्योंकि टेम्पररी रिवर्सल है. अगले मंथ में आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपको गुड्स रिसीव्ड हुए हैं. अंडरस्टूड एवरीवन?
Yes or no? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? प्रतीक और शुभम को समझ में आया, बाकी लोगों को? फ्रेंड्स, मौसमी मैडम ने मेहनत ली है विकासा के सातारा, और इन्होंने आपके लिए सेशन अरेंज किया है। आप सबसे एडवांस्ड हो, अब शायद आज इंडिया में बहुत कम लोगों के फॉर्म समझ आए, उसमें से आप लोग हो गए। तो आया है नहीं आया समझ में, प्लीज रिप्लाई करिए। हाँ यस, अभी श्वेता यस, रुपया, श्रेयस, ये जो 5 6 7 8 लोग, उसमें 3 4 लोग तो मेरे ऑफिस में से ही है। आप लोग भी करिए, बोलिए नहीं आ रहा है तो बोलिए नहीं आ रहा है, मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा। प्लीज आप क्वेश्चन आंसर में रिप्लाई कीजिए, क्योंकि मैं दो ऊपर नहीं कर पा रहा हूँ एक साथ में। क्वेश्चन आंसर का जो बॉक्स है उसमें रिप्लाई करिए। परफेक्ट। सो ये जो 4B1 और 2 है, ये आपको आप ये सेशन में आप आपके ऑफिस में सबको समझाइए, आपके क्लाइंट को समझाइए, अलग से लगे तो एक ऑनलाइन सेशन लीजिए, बट इंश्योर कि ये इंप्लीमेंट हो। मान लो अभी बुक्स में हम ऐसा नहीं कर रहे, अभी तक क्या किया जाए? तो अभी एक काम करिए, मिडवे में करने से अच्छा अगले मंथ की 1 तारीख से बुक्स में इनेबल क्रेडिट लेते जाइए। ये सिस्टम को इंप्लीमेंट करना जरूरी। जीएसटी में होता क्या है कि जो चेंजेस आते हैं ना, उसको ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया जाता टाइम टू टाइम बेसिस पे, और फिर 1 2 साल बाद समझ में आता है मिस्टेक हो गई। दोस्तों, मैं एवरी मतलब हफ्ते में ऐसे बड़े बड़े केसेस देखते हूँ जहाँ पे छोटी मिस्टेक हो गई है, बट वो आदमी इतना परेशान होता है कि पूछो मत। मतलब सो नहीं पाता, टैक्स पेयर से मिस्टेक हो जाती है, प्रोफेशनल लोगों से मिस्टेक हो जाती है, और उसकी इम्प्लीकेशंस करोड़ों में होते हैं। छोटे छोटे मिस्टेक्स हो जाते हैं। यस, सो हम टेम्पर रिवर्सल की बात करते थे। और क्या आ सकता है टेम्पर रिवर्सल में? 180 डेज वाला प्रोविजन जीएसटी में बोला गया है कि अगर आपके सप्लायर को अगर आप पेमेंट नहीं करते हो 180 डेज में, तो आपको रिवर्सल करना है। तो आपको 4B2 में दिखाना है। जैसे मान लो यहाँ पे शिवांगी है, इन्होंने मेरे से जनवरी मंथ में कुछ परचेस किया था, जनवरी 2022 में। मैं उनको फोन कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ कि प्लीज मेरा पेमेंट दो। तो बोलते बस करते 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 कर ही नहीं रहे। अभी आज सितंबर आया, मान लो 180 डेज शायद कंप्लीट भी हुए। तो क्या करना है शिवानी जी ने करना है कि उनके 4B2 में इसको रिवर्सल करना है। और मैं भी होशियार हूं, मैं भी उनको एक मेल डालूंगा, डियर taxpayer, dear customer, since you are not making our payment, you must be aware compliance of section 16 of GST Act, as per which you are required to reverse the ITC. I hope you have taken a compliance. I hope you have taken an action as per that. ऐसे कुछ तो भी डरावने वाले मेल डाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पेमेंट मिल जाए, बट वो दे ही नहीं रहे। तो क्या करना है उन्होंने उनके 4B2 में उसको रिवर्सल में दिखाना है कि ये क्रेडिट रिवर्स हो रहा है बिकॉज सप्लायर को पेमेंट नहीं किया जा रहा है। ये एक्शन होगी जो आदमी आईटीसी ले रहा है और पेमेंट नहीं कर रहा है उसकी तरफ से। अभी जो भी दोस्तों, मैं पहले से बोल रहा था कि ये जो प्रोविजन 180 डेज के डिपार्टमेंट्स को आज न कल एक्शन लेंगी। और अभी जब 5 साल होने बाद डिपार्टमेंट को ध्यान में आया कि ये एक बड़ा ग्रे एरिया है जहाँ पे टैक्स पेयर मिस्टेक कर रहे हैं, तो आज उनके ऑडिट्स में पॉइंट उठाते हैं कि आप दीजिए हमें आपका एजिंग, सप्लायर का एजिंग, और जहाँ पे केसेस मोर देन 6 मंथ का पेमेंट आउटस्टैंडिंग दीजिए। अब उन्होंने मांगा तो देना पड़ता है, उनके लिए रेडीमेड ऑब्जर्वेशन नहीं है कि ये तो आपने टैक्स रिवर्स नहीं किया है, तो इतना तो आपको भरना है विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी, एक लव लेटर दे देते हो। सो आपके अगर कोई बड़े क्लाइंट है तो इसको डेफिनेटली इंप्लीमेंट कीजिए, 180 डेज का रिवर्सल करने लगाइए, क्योंकि लॉ में लिखा है तो करना पड़ेगा। क्या है सही है, क्या है गलत है, वो आगे जाके सुप्रीम कोर्ट तक मैटर जाने वाला है, बट बेटर टू मेक द कंप्लायंस ऑफ द लॉ बिकॉज वी डू नॉट वांट एनी अननेसेसरी लिटिगेशन। Pratik is asking if I want to take the credit and reverse from, then can I do so? Pratik, I have not understood your query properly. You can call me afterwards also. Sir, can I unmute myself and ask the question? You already unmuted. Okay, you can ask. I don't know. Just if you would have said no, then I would have muted myself again. So नहीं, ठीक that's है, what. पूछिए। Sir, suppose करिए कि मेरा एग्जाम टर्नओवर है, so I'm not taking any credit. I'm booking all the GST ITC that is being shown in either 2A or 2B in
the expense directly and I am filing a nil GST या 3B return. So अब सर मुझे जैसे अगर जो आपने बोला कि इसमें टैली करना चाहिए आपको, तो मैं अगर उसको दिस करंट फाइनेंशियल ईयर जो कि 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हुआ है एंड करंटली आज 15 सितंबर 2022 है, तो सर जो ये एंटायर अप्रैल से अगस्त तक का मंथ गया है, तब तक का अगर मुझे पूरा का पूरा ये आईटीसी लेके और फिर रिवर्सल करना है तो मैं अभी कर सकता हूँ, या मुझे अब जो अगस्त का मंथ या सितंबर का मंथ जो है तब से फिर मैं स्टार्ट करूंगा? तो आपका क्वेश्चन है कि मैं बुक्स ऑफ अकाउंट में इसका इफेक्ट कब लेना शुरू करूं, मतलब इस तरह से जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, राइट? राइट सर। तो देखिए किरण, प्रतीक, ये एक प्रोसीजरल कंप्लायंस है, बराबर है? ओके। ये मेरे हिसाब से आज के तारीख में भी 70-80% टैक्स पेयर इसको नॉन कंप्लायंट हो गया और शायद अगस्त का रिटर्न भी ठीक से नहीं जाएगा। तो मेरे हिसाब से इट्स माय पर्सनल व्यू, गवर्नमेंट आपको फांसी पे तो नहीं चढ़ाएंगी या लाइबिलिटी तो नहीं करेंगे इशू, क्योंकि हो सकता है समझने में टाइम लग गया, आपने कुछ गलत तो क्रेडिट नहीं लिया है। नहीं सर। बट इसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। बट आप क्लाइंट को ऐसे बताओगे ना तो करेगा ही नहीं चेंजेस। अरे ऐसा है क्या, कुछ होने वाला नहीं तो मैं क्यों करूं? हो सकता है आपको जनरल पेनल्टी लगा दे डिपार्टमेंट हर मंथ के लिए। सर बेसिकली मान लो आपने कंप्लेंट्स किया ही नहीं आने वाले 1 साल तक, इस जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो 25,000 रुपए पर मंथ की आपको जनरल पेनल्टी लगा सकता है, 2.5 लाख साल की 2.5-3 लाख हो जाएगी। ओके बराबर है? तो सर, फॉर योर but, अंडरस्टैंडिंग पर्पस ये प्रोसीजरल कंप्लायंस है, इसमें हम Okay. एक्चुअल क्रेडिट कुछ लेते नहीं है ज्यादा, सिर्फ कैसे दिखाना है इसकी बात है। राइट। जैसे आपको ऑफिस में फॉर्मल ड्रेस पहन के आना है, बराबर है? आप कभी कैजुअल पे आ गए तो आप सर को क्या बोलते हो, सर बारिश में था भीग गया, ठीक है, अभी लीव तो नहीं लगेंगी ना तुम्हारी। नहीं ऑफ कोर्स। बट अगर आप हरो जाओगे तो फिर आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकती है। तो सर अगर जैसे अगर कोई क्लाइंट कहे या कि भाई आप अप्रैल से ही पूरा प्रॉपर इसको कर दो अकाउंटिंग को एंड नॉट फ्रॉम से 1 सितंबर ऑनवर्ड्स। अप्रैल तो मतलब 2023, सॉरी सर, अप्रैल 2022 से 23, अप्रैल 2022 सर, करंट फाइनेंशियल ईयर में ही। प्रत्येक बहुत सारे कंपनीज या बड़े बड़े कंपनी होते हैं उनका अकाउंटिंग डेली बेसिस पे चलता है, पुराना बैंक जाके तो चेंज नहीं कर सकते। आपके दिमाग में शायद छोटे टैक्स पेयर हो गए, थिंक बिग। यस सर। बराबर है? छोटे टैक्स पेयर केस में तो आप चाहे तो कर सकते हो, मैं तो फ्री में कुछ नहीं करूंगा, वो तो चाहता है सर अलग से। आपकी बात सही है। तो सर अगर सपोज कीजिए अप्रैल 2022 से नहीं मत मैंने करिए, ये बिकॉज चेंज। आपके रिटर्न और बुक्स वापस मिसमैच हो जाएंगे। ओके तो आपने 4 मंथ के रिटर्न फाइल किए ना, बुक्स के हिसाब से मैच होंगे। अगर आप बुक्स में आप वापस क्रेडिट लोगे जो रिटर्न में दिखाया नहीं आपने, तो मिसमैच हो जाएगा। सर सपोज करिए कि मैं करंट डेट में उसका एंट्री करके और फिर करंट डेट में ही मैं उसका रिवर्सल कर दूं, तो मेरी बुक्स में तो वो ठीक दिख है, जाएगा कि मैंने क्रेडिट भी ले लिया एंड उसका रिवर्स भी कर ठीक है, दिया आप सेम चाहे डे तो को। कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब इसमें। राइट, बट सर उसमें फिर और एक कॉम्प्लिकेशन वो नहीं अटकेगा कि सर जैसे आपका जो आप जैसे सिस्टम जनरेटेड 3B भी अभी हो जाता है, तो सर जैसे ये आपका उसमें ऑलरेडी टैक्स जो आपका एलिजिबल आईटीसी बन रहा है उसका एक प्री फिल्ड फिगर रहता है, उसका कुछ एक वेरिएशन ही आप ले सकते हैं, वरना फिर वो इश्यू आ जाएगा। ऐसा भी एक कुछ है सर। मैं आपका लास्ट क्वेश्चन अभी आंसर करता हूँ, उसके बाद हम लोग तो फोन पे डिस्कस करेंगे बाद में। ओके सर। ठीक है, 3B में जो अमाउंट आती है आप उसको एडिट करते तो रेड कलर में हाईलाइट होती है, डरने की बात नहीं है, कोई आपको लगे फाइन नहीं दे रहा है। अगर आप सही हो तो आप चाहे वैसा एडिट करो, अगर ओके आप सही हो तो उसको आप एडिट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हाईलाइट होती है और गवर्नमेंट आपको डराना चाहती है कि ज्यादा क्रेडिट मिलो। दोस्तों ऐसे भी केसेस हुए हैं जहां पे लोगों ने शुरुआत के दिनों में जीएसटी में 50-50 करोड़ का क्रेडिट लिया 3B में, बोगस क्रेडिट। गवर्नमेंट को मालूम था ऐसा भी करेंगे लोग, होशियार है हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग। लॉ कंप्लीट होने के एक रीजन ये है कि टैक्स पर भी अलग अलग ढूंढता है चीजें फ्रॉड करने की, तो उन्होंने 3B में ऐसे क्रेडिट लिया उनके हिसाब से कुछ भी बोगस क्रेडिट 5-5, 10-10, 50-50 करोड़ का, और इसके वजह से 1.5-2 लाख करोड़ का जीएसटी का फ्रॉड इंडिया में हुआ है। मैंने खुद लास्ट मंथ में जो लगभग 2,000 करोड़ का एक फ्रॉड का केस देखा आईटीसी का। वैनिश हो जाते बाद में, वो लोग मिलते ही नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने वो रेड हाईलाइट का एक लाया है कि आप ज्यादा कुछ चेंजेस करते हो हम हाईलाइट करेंगे आपको भी और ऑफिसर को भी, फिर हम चेक करेंगे बाद में क्या हुआ है। तो डरने की बात नहीं, आप चाहे जैसा चेंज कर सकते हो अगर आप सही हो तो 4A 4B 4A हमने डिस्कस किया, टोटल आईटीसी हमें लेना है।
4B1 में हमें परमानेंट आईटीसी रिवर्सल दिखाना है, उसमें आता है सेक्शन 17(5), 38, 42, 43 रिवर्सल। 4B2 में आता है टेम्पररी आईटीसी रिवर्सल, मतलब जैसे उसमें एक केस आएंगी कि अगस्त मंथ का मेरा परचेस था बट गुड्स मिले नहीं थे, तो मैं अगस्त मंथ के 2B में तो दिख रहा है बट मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, तो मैंने अगस्त मंथ में 4A में ऐड किया और 4B2 में रिवर्स किया, करेक्ट। उसके बाद 180 डेज का रिवर्स ला सकता है। उसके और मान लो आपने कुछ पहले गलत क्रेडिट लिया था, जैसे प्रतीक पूछ रहा था, अगर मान लो उसने कुछ कौन से कंपनी के क्लाइंट के केस में कुछ 2-3 लाख रुपए पहले कोई मंथ में ज्यादा क्रेडिट लिया था, तो वो 4B2 में दिखा सकता है रिवर्सल। सो 4B2 में बेसिकली टेम्पर रिवर्स लाएगा और अदर रिवर्स लाएगा, अंडरस्टूड। 4B2 में जो चीज आने वाली है तो उसमें से कुछ ऐसा हो सकता है कि आप अगले मंथ में लोगे, तो आप अगले मंथ में कहां पे लोगे उसको? 4A में वापस लोगे। जैसे मेरा जो एग्जांपल था कि 15 सितंबर को मेरे को गुड्स मिले हैं, तो 15 सितंबर को मिले मतलब मेरे सितंबर के 3B में वो क्रेडिट 4A में ऐड होगा अगले मंथ में, मतलब सितंबर के मंथ में मैं ऐड करूंगा 4A में, वापस रिवर्स नहीं करूंगा तो गुड्स मिल गए। 2B में वो आने वाला नहीं है, 2B में तो अगस्त की ही आ गया है वो, सो 4A में मेरा उतना क्रेडिट सितंबर मंथ के ऐड होगा। सो इस एग्जांपल में कैसा होगा, जो मैंने नीता का प्राइवेट लिमिटेड एग्जांपल लिया, अगस्त मंथ में क्या होगा? 4A में ऐड होगा, 4B2 में रिवर्सल होगा अगस्त मंथ में, और सितंबर मंथ के 3B में क्या होगा? 4A में ऐड होगा सिर्फ, क्योंकि सितंबर मुझे क्रेडिट मिलेगा, गुड्स 15 सितंबर को मिले थे इसलिए। 4B में रिवर्सल होगा क्या? नहीं, क्योंकि आई एम एलिजिबल फॉर दैट क्रेडिट, अंडरस्टूड। और 4C मेरा नेट आईटीसी आता है 4C में। हाँ, यहाँ पे इस एग्जांपल में मैं जो अभी बता रहा हूँ, सितंबर मंथ में 4D में हमने जो 4A में जो अलग से अमाउंट लिया है उसका 4D में सिर्फ डिस्क्लोजर करना है। सो 4D जो है इसमें हमें डिस्क्लोजर करना है कि ऐसा आईटीसी जो 2B में नहीं आया है बट मैं एलिजिबल हूं इसलिए मैं ले रहा हूं 4A में, तो वो मुझे अलग से 4D में दिखाना है, सिर्फ दिखाना है। 4D इज ओनली डिस्क्लोजर, अंडरस्टूड। 4D। सो 4A में होता है मैं आईटीसी लिया, 4B1 परमानेंट रिवर्सल, 4B2 टेम्पररी एंड अदर रिवर्सल, 4C होता है नेट आईटीसी, ये नेट आईटीसी मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाता है, और 4D मतलब ऐसा आईटीसी जो मेरे 2B में नहीं दिख रहा है बट मैं ले रहा हूं बिकॉज आई एम एलिजिबल, सो 4D में अलग से हमें दिखाना है, अंडरस्टूड फ्रेंड्स? समझ में आया 4D वाला रो? यस श्वेता, श्रुतिका, परफेक्ट। बालाजी, शुभम, राइट। तो अभी अच्छा लग रहा है मुझे, आप लोगों को समझ में आ रहा है? सो ये जो 4B2 है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा, टेम्पररी रिवर्सल, उसमें क्या आता है नॉर्मली? नॉन पेमेंट का केस, नॉन रिसिप्ट का केस। मान लो सप्लायर नहीं दिखा रहा है, बहुत अगर कोई भी कंपनीज है जो सप्लायर ने दिखाया तो ही क्रेडिट लेते, वरना लेते नहीं है। अगर मान लो ऐसा केस आपने पहले क्रेडिट लिया है बट सप्लायर ने पे नहीं किया है, तो आप चाहे तो टेम्पररी में इसको रिवर्सल कर सकते हो। और चौथा बुलेट पॉइंट मतलब ऐसा कोई भी क्रेडिट जो आपने गलती से पहले लिया था, गलती हुई थी, तो आप 4B2 में दिखाओ। अब अभी हम आते हैं 4C, तो समझ में आया सबको? 4C मतलब नेट अमाउंट होती है 4A माइनस 4B। 4D जिसका हमने थोड़ा डिस्कशन किया, वापस एक बार उसको थोड़ा स्पेसिफिक डिस्कशन करते हैं। 4D1 में आता है ऐसा आईटीसी जो हमने पहले रिवर्स किया था, अभी एलिजिबल इसलिए अभी हमने ऐड किया है 4A में, मेरे 2B में नहीं दिख रहा है बट उसका मैं अलग से रिपोर्टिंग करूंगा 4D1 में। दोस्तों 4D में ही चेंजेस हुए हैं, जो अमेंडमेंट हुआ है मेजर वो 4D में हुआ है। पहले हम 4D में 17.5 का क्रेडिट दिखाते हैं, याद है किसी को? 4D में हम पहले 17.5 का क्रेडिट दिखाते हैं, मैं करेक्ट? यस, यस और नो?
सो 4D में हम लोग पहले 17.5 का क्रेडिट अलग से दिखाते थे, अभी 4D में 17.5 का क्रेडिट दिखाना नहीं है। 4D में क्या दिखाना है? ऐसा क्रेडिट 4D1 की बात करता हूं मैं, जो मेरे 2B में इस मंथ में नहीं दिख रहा है बट मैं एलिजिबल हूं इसलिए 4A में ले रहा हूं, तो उसका अलग से मुझे रिपोर्टिंग करना है 4D में। तो ऑफिसर क्या करेगा? ऑफिसर को अगर आपका क्रेडिट चेक करना है 2B के साथ मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, वो क्या करेगा? 4A का क्रेडिट देखेगा, उसमें से 4D माइनस करेगा, फिर नेट अमाउंट आएगी वो चेक करेगा 2B के साथ मैच हो रहा है, हाँ फिर परफेक्ट है, फिर आप बराबर हो। उसको लगा नहीं यार ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 2B के साथ स्टिल डिफरेंस है। 4A में आपने 100 रुपये लिया है, 4D में आपने दिखाया कि ऐसा क्रेडिट जो मेरे 2B में नहीं है बट मैं एलिजिबल हूँ, ऐसा मान लो 25 रुपया है तो 125 का क्रेडिट लिया आपने, बट आपके 2B में अगर दिख रहा है 90 रुपीज, तो ऑफिसर को लगेगा 35 रुपीज का कुछ ना कुछ तो भी गड़बड़ है, तो फिर मतलब आपका चेकिंग ज्यादा डिटेल करेगा। तो बेसिकली चेंजेस जो हुए हैं, एक सिमिलरिटी हो इन द डिस्क्लोजर पर्पज, देयर शुड बी सिमिलरिटी इन रिपोर्टिंग, और ऑफिसर को भी 2B के साथ मैच करना इजी हो जाए, इसके लिए चेंजेस हुए हैं। जितने सिंपल चेंजेस मुझे पहले लग रहे थे, जब क्लाइंट के साथ डिस्कशन शुरू हुआ, इसके ऊपर ज्यादा स्टडी शुरू हुई, तब समझ में आया इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और मेरे दिमाग में वही आ रहा है, मैं जब मैथ्स पढ़ा था, साइन कॉस टैन थीटा बीटा कुछ होता है ना, उससे भी भयानक कॉम्प्लिकेशन आईटीसी में हो गए। आईटीसी किसका मिलता है किसका नहीं मिलता है, फिर वो अलग अलग रिवर्सल 42 43 38 वगैरह वगैरह। फिर अभी 3B में फिर 2B आया, रिकंसाइल करो हर मंथ को, और अभी आया है कि आपको कैसे दिखाना है 3B में। एक प्रकार का एक पीएचडी वाला टॉपिक हो गया आईटीसी। 3B में दिखाना जितना मतलब एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ, आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, बट करना पड़ेगा। सो व्हाट इज योर अप्रोच, व्हाट शुड बी योर अप्रोच? आपके बड़े क्लाइंट्स हो गए तो उनको पहले अवेयर करो इसके बारे में, ऐसा है, उनको सब समझाओ और मेल पे डाल दो कि वी हैव एक्सप्लेन्ड यू। मान लो अगर वो रिटर्न फाइल करते होगे, तो नहीं करते होगे तो उनके अकाउंटिंग में तो चेंज करना ही करना है, तो भी आपको उनका डिस्कस करना जरूरी है। और जिससे प्रतीक ने पूछा था मेरा ठीक से कंप्लायंस नहीं हुआ क्या होगा, जैसे दोस्तों ये चेंज हुआ था जुलाई मंथ में, जीएसटीएन को लग गए 1.5-2 महीने इस चीज को जीएसटीएन पोर्टल पे लाने के लिए। जीएसटीएन पोर्टल पे लास्ट ही मंथ के मेरे हिसाब से अगस्त 25 से 30 के आसपास आया है ये चेंजेस, तो गवर्नमेंट को भी टाइम लग रहा है ये चेंजेस करने को, तो हमारे से तो गलती हो ही सकती, बट ये गलती पे गलती नहीं करनी चाहिए। एक आध महीना मन ठीक है, कोई ऑफिसर अगर आपके केस में डिटेल में गया तो बोलेगा नहीं नहीं आपने हर एक मंथ में गलतियां की, हमने सर्कुलर इशू किया, हमने लॉ में चेंजेस लाए, बट आप लोग देख नहीं रहे हो, हम आपको जनरल पेनल्टी लगाएंगे हर मंथ के लिए। सो 4D में ऐसा आईटीसी आएगा 4D1 में, जो आपने 2B में दिख रहा है, सॉरी 2B में नहीं दिख रहा है, आप एलिजिबल हो तो आप उसको वापस यहाँ पे दिखाओगे 4D1 में। आप 4A में क्यों ले रहे हो उसको? बिकॉज आपने पहले मंथ में रिवर्सल किया होगा 4B2 में, जैसे मैंने आपको बताया 180 डेज वाला या फिर नॉन रिसिप्ट ऑफ गुड्स वाला, तो आपने उसको लास्ट मंथ में, हमारे नीता वाला एग्जांपल, हमने अगस्त में उसको रिवर्सल किया था और सितंबर मंथ में उसको 4A में ऐड करेंगे। 4A में ऐड किया अलग से, जो कि 2B में नहीं है, इसलिए उसको हम अलग से 4D में दिखाएंगे। आई होप you understood this. Please reply either in big yes or big no. 4D1 please, यही कॉम्प्लिकेशन है समझने के लिए, so please reply either big yes understood or no. अगर नहीं आए तो बोलिए, मैं वापस इस पॉइंट के ऊपर टाइम दूंगा, बट प्लीज रिप्लाई। अराउंड 52 पार्टिसिपेंट से 7-8 लोगों ने बोला है यस, श्वेता इज सेइंग यस, श्रीशाल इज सेइंग यस, श्रुतिका यस, व्हाट अबाउट अदर्स? इफ एनी क्वेरी क्वेश्चन प्लीज आस्क इमीडिएटली। आरती यू आर सेइंग सर कैन यू रिपीट इट अगेन? आरती आपको कंफ्यूजन कहां पे है, कौन सा टेबल समझ में नहीं आया है?
मैं उस टेबल से एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ वापस। 4D1 ठीक है, देखो हम 4A में क्या दिखाएंगे, जो मेरा टोटल आईटीसी है पूरा का पूरा 2B में जो दिख रहा है वो सब कुछ आ जाएगा मेरा 4A में, इनएलिजिबल भी। 4B में क्या होगा, मेरा रिवर्सल आने वाला है। रिवर्सल में भी दो चीजें हैं, एक परमानेंट रिवर्सल जो मेरा वापस कभी फ्यूचर में मिल ही नहीं सकता मुझे, और 4B2 में है जो इस मंथ में मैं रिवर्स कर रहा हूं बट अगले मंथ में मुझे मिलने वाला है, बराबर है, अगले मंथ में मुझे मिलने वाला है। रीजन जो भी कुछ हो अभी थियोरेटिकली समझ लो, बराबर है। तो आरती आपने ऐसा कुछ क्रेडिट मान लो लास्ट मंथ में लिया था, आपने उसको इस एग्जांपल के तौर पे आपने 4B2 में रिवर्स भी किया है, इसका मतलब आपने नेट इफेक्ट उसका क्रेडिट नहीं लिया, ठीक है। मान लो इस करंट मंथ में आप एलिजिबल हो गए हो क्रेडिट लेने के लिए, आपने कंडीशन सेटिस्फाई की होगी जो भी कुछ आपके लिए नॉन कंप्लायंट थे, तो आप क्या करोगे, आपके 2B में इस मंथ में आएगा क्या, नहीं आएगा क्योंकि सप्लाई में लास्ट मंथ में दिखाया है। तो आप क्या करोगे, आप 4A एक एक जब आपका एक्सेल का वर्किंग करते हो उसमें मैन्युअली एक एंट्री एडिशनल ऐड करोगे। इधर तक समझ में आया, 4A में आप इस एंट्री को अलग से ऐड करोगे, यस। अभी ये एंट्री आपके 2B में आई है, सॉरी 2B में नहीं आई है बट आपने अलग से ऐड की है इस मंथ में, तो इसका अलग से डिस्क्लोजर करना है, इसलिए गवर्नमेंट कहती है आपको कि 4D1 में ये अमाउंट अलग से दिखाओ, ये सिर्फ दिखाना है। जैसे कि मान लो इस मंथ का आपका 2B के हिसाब से 100 रुपया क्रेडिट है, 25 रुपए आप एडिशनल इस मंथ के लिए एलिजिबल हो, जो आपके 2B में इस मंथ में नहीं दिख रहा, शायद पहले के मंथ में दिख रहा था, तो आप वो एडिशनली 4A का जब वर्किंग करोगे एक्सेल में आप उसको 25 रुपए ऐड करोगे, सो 125 रुपए हो गया आपका 4A का क्रेडिट, बराबर है। उसमें से 25 रुपए जो है 25 रुपीज इज नॉट कमिंग इन योर 2B ऑफ द दिस मंथ, ये पहले के मंथ में आए हुए हैं। तो ये जो 25 रुपीज है ये आपको अलग से 4D1 में रिपोर्ट करने हैं, 25 रुपीज ओनली। इसका इंपैक्ट क्या होगा, या ये ऑफिसर को कैसे यूज करेगा, ऑफिसर देखेगा 4A माइनस 4D, वो ऑफिसर का कैलकुलेशन होगा उसके दिमाग में, उसे ये उसको भी समझना जरूरी हो, जब समझेगा तब उस इस तरह से उसने जाना चाहिए। 4A माइनस 4D करेगा 1, तो उसका शायद 2B के साथ मैच होगा इस मंथ के। अंडरस्टूड, आया समझ में अभी? यस आरती, यस फ्रेंड्स, अगर हमें कोई चीज समझ में नहीं आई ना पूछना चाहिए। यू आर अ स्टूडेंट, यू हैव ऑल राइट आफ्टर बिगिनिंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू डू नॉट हैव राइट कंसल्टेशन एडवाइजरी फी विल बी एप्लीकेबल। ओके, सो 4D1 आपको रिपोर्ट करना अलग से। 4D2 क्या है, ये 4D2 नहीं देते तो भी चलता था बट इन्होंने देख के और कॉम्प्लिकेशन बढ़ा दी। 4D2 ऐसा आईटीसी है जो उनका कहना है कि वो आपका टाइम बार हो गया है। टाइम बार हो गया मतलब आप हम सबको मालूम है। अच्छा मुझे एक बताइए, आईटीसी लेने के लिए लास्ट डेट क्या है, व्हाट इज द लास्ट डेट टू टेक द 20 फाइनेंशियल 21-22 क्रेडिट? फाइनेंशियल ईयर 21-22 का आईटीसी लेने के लिए लास्ट डेट क्या है? यस, ये काफी प्रोफेशनल इसके ऊपर कंफ्यूज है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। 3B को थोड़ा साइड में रख रहा हूं मैं। 21-22 का पेंडिंग कुछ आईटीसी होता है मेरा, वो लेने की लास्ट डेट क्या है मेरे लिए? यस, 30th September, whichever earlier, annual return 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, सितंबर एनुअल रिटर्न which earlier। अरे 30th नवंबर के बारे में कोई नहीं बता रहा है, 30th नवंबर है या नहीं, कुछ सुनने में आया नहीं आया? 20 अक्टूबर, सब लोग कितने होशियार है दोस्तों। एक बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है अभी। फाइनेंस एक्ट 2022 में जीएसटी में आरती सिंह 30 नवंबर से ड्यू डेट फॉर जीएसटी 9, नहीं 30th नवंबर नहीं है आरती, वो 31 दिसंबर है ड्यू डेट ऑफ जीएसटी 9। फ्रेंड्स, जीएसटी में क्या हुआ, जब हमारा बजट अभी प्रेजेंट हुआ उस टाइम पे जीएसटी में चेंजेस किए गए, आईटीसी लेने की डेट को बढ़ाया गया 30th नवंबर के लिए। ये फाइनेंस बिल में आया, एक्ट फाइनेंस एक्ट में भी आया जब बाद में मार्च मंथ में जब बिल पास हुआ, बजट पास हुआ तब।
तो एक्ट में तो डेट चेंज हो गई है कि अभी आईटीसी लेने की डेट जो है 30 नवंबर है। तो सभी प्रोफेशनल के लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम 30 नवंबर तक एक 21-22 का क्रेडिट ले सकते हैं। ये आपके सिलेबस में भी आ सकता है, शायद आपके क्वेश्चन में, सिलेबस में एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो क्या ये सही है? आज की तारीख में नहीं, बिकॉज देखिए एक्ट में चेंजेस होते हैं और उसका इफेक्टिव डेट बोला जाता है कि चेंजेस कब से इफेक्टिव होंगे। तो ये जो चेंज एक्ट में हुए हैं इसको अभी तक इफेक्टिव किया गया नहीं है। ये कब होगा मालूम नहीं। क्यों पेंडिंग है? शायद अभी तक जीएसटी में जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेंजेस कर लिया तो उसका स्टेट गवर्नमेंट ने भी चेंजेस करना जरूरी है। सो जब सभी स्टेट इसको चेंज करेंगे शायद, तब उसके बाद शायद गवर्नमेंट बोलेंगी ये चेंज अभी इफेक्टिव होगा डेट से। जब तक ये नहीं होता है तब तक हमारे लिए सितंबर मंथ का रिटर्न की ड्यू डेट यानी 20 अक्टूबर, ये एनुअल रिटर्न फाइलिंग व्हिचएवर इज अर्लियर यही है 30 नवंबर के। अगर आपके प्रिंसिपल, अगर आपका कोई दोस्त बोल रहा है तो आज की तारीख में वो एप्लीकेबल नहीं है, भले एक्ट में हुआ है, एक्ट में हुआ है बट इफेक्टिव फ्रॉम द डेट नोटिफाइड, और वो डेट अभी तक नोटिफाइड नहीं हुई है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसके ऊपर मुझे पिछले 8-10 दिन से बहुत कॉल आ रहे थे, तो मैंने इसके ऊपर एक मतलब सभी प्रोफेशनल को अवेयर हो जाए इसके मैसेज भी सर्कुलेट किया, बट स्टिल पीपल आर कंफ्यूज्ड। सो आपको जो भी पेंडिंग क्रेडिट आपके क्लाइंट के केस में, आपके टैक्स, आपके पास जो भी कंपनी आप हैंडल कर रहे हो, अगर लेना है उसकी लास्ट डेट है सितंबर मंथ का रिटर्न की ड्यू डेट ही। यस, अभी हम डिस्कस कर रहे थे 4D2। 4D2 क्या है? ऐसा क्रेडिट जो टाइम बार्ड हो गया है। मतलब मान लो आपको आपका कुछ क्रेडिट जो था आपने लिया ही नहीं था, आपको आज ध्यान में आया, आपके 2B में दिख रहा है। मान लो 2017-18 का क्रेडिट एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, 17 क्रेडिट आज की तारीख में आपको 2B में आया, अरे बाप रे ये तो क्रेडिट हमने लिया ही नहीं था, और आज दिख रहा है 17-18 का क्रेडिट 2B में फॉर एग्जांपल, तो आपको मिलने तो वाला नहीं है, तो आप उसको 4D2 में दिखाओ। वो कहीं पे भी नहीं आएगा आपका, ना इधर 4A में आएगा, इनेलिजिबल किधर नहीं आएगा, वो डायरेक्ट आपका 4D2 में आएगा। दूसरा, कुछ केस में ऐसे होता है, जैसे मान लो मैं कुछ काम के लिए, जैसे मान लो हमारे कोई क्लाइंट है बिहार में, तो वहां पे मैं गया, वहां पे होटल में रुका, बिहार के होटल वालों ने मुझे उधर का इनवॉइस के ऊपर लॉजिंग का टैक्स लगाया, CGST HGST। इमल प्रॉपर्टी होती तो उसका टैक्स इमल प्रॉपर्टी के हिसाब से लगता है जहाँ पे है वो, भले ही मैं रजिस्टर्ड महाराष्ट्र में, IGST नहीं लगता है, तो मुझे बिहार का CGST HGST लगा है। अभी क्या मुझे वो महाराष्ट्र में बिहार का CGST HGST लगेगा? नहीं मिलेगा, क्रेडिट मिलता नहीं है बिहार का CGST HGST मुझे महाराष्ट्र में, इसलिए मुझे 4D2 में अलग से रिपोर्ट करना है। ये 4D का नहीं करते तो भी चलता था यार, ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये GST 3B का ITC, आप 4D2 को अलग से क्यों मांग रहे हो? बट मांग रहे हो, हमें करना जरूरी है। सो 4D2 अंडरस्टूड। देखिए मुझे भी पहले चेंजेस बहुत सिंपल लगे थे, बट जब मैं इसमें अंदर डीपली गया, और जब इस सेमिनार भी था और डीपली गया, तो मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं एक क्लाइंट को एक्सप्लेन कर रहा था, ये बहुत सीनियर है, बहुत नॉलेजेबल है, 2-3 हजार करोड़ का कंपनी हैंडल करते हो, उनको समझाते भी मैं दिमाग खराब हो गया, उनको कैसे बताऊं मैं अभी चीजें। हम वापस एक बार इसको समराइज करते हैं टेबल फॉर्म में डिस्कशन को। 4A पे, ये 4A का टेबल है, 4B का टेबल अगले साइड में आएगा, और 4D आएगा। अंडरस्टूड। 4A में हम पूरा ITC लेंगे। जनरली ये 4A का ITC मेरा 2B के साथ मैच होगा, इन जनरल आई एम सेइंग, नॉट इन एवरी टाइम। इसमें मुझे 75 का ऐड लेना है, याद रखना है, इसलिए मैंने ब्लू कलर के टेबल में जो दिया है वो स्पेसिफिक केस आपको याद रखना है। सो 75 का क्रेडिट अभी इलिजिबल था, अभी तक लेते नहीं थे, बट अभी आपको 4A में लेना है वो। अंडरस्टूड। ऐसा क्रेडिट भी आपको 4A में लेना है जो आपके गुड्स रिसीव्ड नहीं हुए हैं और 2B में दिख रहा है, तो आपको लेना है। इन शॉर्ट आपको 2B पूरा लेना है 4A में, इन शॉर्ट सिंपल वर्ड्स में। अंडरस्टूड। 4B1 में आपका परमानेंट रिवर्सल आएगा 75, 38, 42, 43, ये आपका 4B1 में जाएगा। 4B2 में क्या जाएगा? ये 3 केसेस मैंने यहाँ पे दिए हैं, ये 4B2 में जाएंगे आपके, जैसे कि ITC which is
ऑटो पॉपुलेटेड, आप मेरे साथ में स्लाइड को पढ़िए, मैं सेकंड रो में हूँ, 4B2 ITC रिवर्सल टेम्पररी एंड अदर रिवर्सल वाले रो में हूँ। इसमें पहला है ITC which is auto populated into B but said goods is not received by the company, is not yet received by the company, is to be reduced from the 4B2। बराबर, मैंने यहाँ पे जानबूझ के लिखा है आपके नॉलेज के लिए, इन फ्यूचर इट कैन बी रिक्लेम्ड एट 4A5, आप फ्यूचर में ले सकते हो जब आपको मिलेंगे वो। सेकंड आपको रिवर्सल क्या दिखाना है, आपका कोई 180 डेज वाला नॉन कंप्लायंस हुआ है, आपने पेमेंट नहीं किया आपके सप्लायर को, तो आपको रिवर्स करना है, वो भी आप 4B2 में होगा। ये भी आप फ्यूचर में रिक्लेम कर सकते हो 4A5 में। और आपने कुछ गलती से क्रेडिट लिया है पहले मंथ में, आपका ध्यान में आया है, तो आप उसको 4B2 में दिखाओ। अंडरस्टूड। 4C में आपका नेट ITC आता है जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाता है। 4D में ऐसा ITC है जो कि आपका 2B में नहीं था। 4D1 की बात करता हूं मैं, 2B में नहीं था बट आपने लिया है बिकॉज आप इस मंथ में एलिजिबल हुए हो, तो वो आपको अलग से 4D1 में दिखाना है। 4D1 में कौन से केसेस आएंगे दोस्तों, इन जनरल ये जो यहाँ पे आपको रो नंबर 2 जो है इसमें जो दिख रहा है आपको फर्स्ट और सेकंड, ये वाली चीजें आप जब फ्यूचर में, मैंने लिखा है फ्यूचर में आप रिक्लेम कर, जब आप फ्यूचर में रिक्लेम करोगे 4A5 में, उस मंथ के 3B में आपको 4D1 में दिखाना है उसको। आई होप नाउ यू अंडरस्टूड इट। और 4D2 में आपको क्या दिखाना है, टाइम बार्ड ITC और ऐसा ITC जो आपका अदर स्टेट का CGST एडजस्ट हो। आई होप नाउ यू अंडरस्टूड द ITC रिपोर्टिंग। यस, अंडरस्टूड। क्या मुझे 50 में से 20 तो भी यस मिल सकते हैं? नहीं आए तो बोलिए, मैं वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि मौसमी मैडम, ऋषिकेश, इन सब ने आपके लिए सेशन इसलिए रखा है क्योंकि आपको समझ में आए। नीता, श्वेता, गौरव, आरती, आदित्य, अब्दुल, फटाफट, और बाकी लोग फटाफट प्लीज रिप्लाई। नहीं आए तो पूछिए क्वेश्चन, अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, इधर से यस और आस्क द क्वेश्चन। करिश्मा, एनी क्वेश्चन? अभी आप में से किसी को क्वेश्चन है ITC रिपोर्टिंग के ऊपर, या 3B के मैंने जो भी डिस्कस किया उसके ऊपर का क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। Sir, then what is the purpose of 2A? आरती, 2A का पर्पज मैं अभी बताऊंगा और कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, तो आप मुझे बाद में पूछिए, क्योंकि वो एक गंभीर समस्या हुई है। 2A 2B कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर दे, बहुत सारे फॉर्म्स और बहुत सारी इंफॉर्मेशन की वजह से। फिर आप मुझे ये भी पूछो, जो GSTR 9 में भी एक ITC आता है वो शायद 2A 2B के साथ मैच नहीं होता, उसका क्या होगा? तो मैं अभी आपको ये आंसर नहीं देता हूँ बिकॉज कंफ्यूजन ना बढ़ जाए किसी दूसरों का भी, बट आप बाद में मुझे पूछ सकते हो। आपको वो अगर उसका आंसर समझना होगा तो आप ये समझे कि 2A और 2B में डिफरेंस क्या है, तो आपको उसका पर्पस समझ में आ जाएगा। ज्यादा कुछ अलग पर्पस नहीं, बट थोड़ा बहुत पर्पस है। यस, एनी अदर? कोई क्वेश्चन नहीं है? शायद किसी ने पूछा 3.11 को एक्सप्लेन कीजिए, किसी ने थोड़ी देर पहले पूछा था, मैं वापस वहां पे आता हूं 2 मिनट के लिए। ठीक है, 3.11 में क्या देना है, ऐसा सप्लाई जिसका टैक्स ई-कॉमर्स ऑपरेटर भरता है, ई-कॉमर्स ऑपरेटर भरता है। ऐसे कौन से केसेस है? ऐसे ये 4 केसेस है। कहां पे दिए है? सेक्शन 95 में दिए, रेडमिट नोटिफिकेशन नंबर 17/2017, डेटेड नोटिफिकेशन नंबर 28, आई थिंक 28 जून ही है ना, हाँ 28 जून ही है। अंडरस्टूड? ये 4 केसेस में ई कॉमर्स ऑपरेटर रिवर्स चार्ज में जीएसटी भरता है, तो इसके लिए अलग से 3.1.1 टेबल आया है। अभी दोस्तों हमें ये समझना है कि ये क्यों आया है, क्योंकि ई कॉमर्स काफी बढ़ रहा है।
गवर्नमेंट काफी रेवेन्यू मिल रहा है। देखिए 4-5 साल बाद ऐसा किसने सोचा नहीं था कि मैं मोबाइल से गाड़ी बुक करूंगा। हमें तो ऑटो के लिए ऑटो 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 करना पड़ता था, अभी ओला आया। फिर उसके बाद किसने सोचा नहीं था क्या मैं घर से ही कोई वैशाली का मसला डोसा ऑर्डर कर सकता हूँ। डिफिकल्ट लग रहा था यार, वो आएगा तो कैसा आएगा, ठंडा होगा गर्म होगा कैसे समझ में आएगा, अभी सब कुछ समझ में आता है। होटल्स हम ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। तो ये बेसिकली 3-4 इंडस्ट्री जो बड़ी सर्विस सेक्टर आए हैं सामने कि जिसके ऊपर ई कॉमर्स ऑपरेटर, और ये अनऑर्गेनाइज थे, जैसे बहुत सारे होटल्स होते हैं अनऑर्गेनाइज होते हैं, रजिस्टर्ड नहीं होते, टैक्स नहीं भरते। तो इनको सबका जीएसटी लेने के लिए गवर्नमेंट ने बोला एक काम करिए, आप कोई टैक्स मत भरो, ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स भरेगा आपका। और ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स भर रहा है पिछले कुछ महीनों से। फिर गवर्नमेंट को लगा यार ये इन्फॉर्मेशन हमें कैप्चर होनी चाहिए, तो उन्होंने बोला एक काम कीजिए, सीए यहाँ पे 51 फ्यूचर सीए या कोई ऑलरेडी सीए भी हो गए, तो आप एक काम कीजिए 3.1.1 में ये डिटेल्स हमको दीजिए अलग से। इसमें भी उन्होंने क्या किया, 2 रो दिए अलग अलग। सीरियल नंबर 1 ई कॉमर्स ऑपरेटर को डिटेल्स देने हैं कि टैक्सेबल सप्लाई ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर पेज द टैक्स अंडर सेक्शन 95, मतलब और एक किसने भरना है, टू बी फर्निश्ड बाय कॉमर्स ऑपरेटर, मतलब ऐसा सप्लाई जिसके ऊपर ई कॉमर्स ऑपरेटर खुद टैक्स भर रहा है उस मंथ में, उसको ये डिटेल्स यहाँ पे देने हैं। आया समझ में? और 3.1.1 के सीरियल नंबर 2 में क्या देना है, ये देना है जो सप्लायर है उसका टैक्स ई कॉमर्स भर रहा है, तो वो सप्लायर ने उसके 3B में उसका जो टैक्स ई कॉमर्स ऑपरेटर पे कर रहा है उसके डिटेल्स यहाँ पे देने हैं। सो 3.1.1 पॉइंट इंटू न्यूमेरिक 1 में ई कॉमर्स ऑपरेटर देगा कि मैं इतना टैक्स भर रहा हूं, मेरे पास से जो लोग बिजनेस कर रहे हैं मेरे प्लेटफॉर्म पे, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर देगा। और रोमन नंबर 2 में सप्लायर देगा कि मेरा ये टैक्स जो है ना, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर भरता है, ये मैं आपको जानकारी देता हूं। तो शायद गवर्नमेंट क्या करेगी, टोटलिटी पे रोमन नंबर 1 नंबर 2 को मैच करेगी, क्या ये मैच हो रहा है, कुछ डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। इन्वेस्टिगेट करेंगे भाई कौन है ऐसा ई कॉमर्स ऑपरेटर जो टैक्स भर नहीं रहा है, कौन ऐसा सप्लायर जो कुछ गड़बड़ है। तो इसलिए उन्होंने 2 चीजें दी हुई है। 3.1.1 का जो न्यूमेरिक नंबर 2 है, इससे सप्लायर की कोई लायबिलिटी आने वाली नहीं है। सप्लायर सिर्फ इतना बोलेगा कि ये जो मैंने सप्लाई किया है ई कॉमर्स से किया हुआ है, और इसकी लायबिलिटी वो ई कॉमर्स ऑपरेटर बंदा जो है वो भर रहा है या भरता होगा, सिर्फ अलग से हमें 3.2 में देना है। अंडरस्टूड? यस? जाओ आगे, प्लीज रिप्लाई फ्रेंड्स। रिसेंट इंपॉर्टेंट चेंजेस इन जीएसटी, मैं कुछ चेंजेस को हाथ लगाऊंगा। एक तो ये चेंज है कि 2-4 जीएसटी नंबर होते हैं, जैसे मान लो मेरे पास एक केस है जहां पे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सब कुछ होता है हिमाचल प्रदेश से, और उनका महाराष्ट्र में भी रजिस्ट्रेशन है। महाराष्ट्र में बहुत सारा क्रेडिट और कैश लेजर में बैलेंस पड़ा हुआ है, ज्यादा बिजनेस महाराष्ट्र से होता नहीं है। तो एक रिक्वायरमेंट होती थी कि बाबा ये बैलेंस तो मुझे दूसरे स्टेट में ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि मेरा ही नंबर है वहां पे, अलाउड कीजिए हमें। तो जब मेरा इसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर मैडम के साथ डिस्कशन हुआ था कि मैडम ये चीज को अगर हम लाते तो अच्छा हो जाएगा, कन्वीनियंस हो जाएगा, क्योंकि मेरे एक पॉकेट में पैसा पड़ा हुआ है दूसरे पॉकेट में नहीं है, तो मैं महाराष्ट्र से अगर मेरा क्रेडिट लेजर कैश लेजर का बैलेंस ट्रांसफर करूँ दूसरे स्टेट में, तो मैं मेरे उस स्टेट में वर्किंग कैपिटल पे कम लोड आएगा। मुझे मालूम था ये चीजें होने वाली नहीं, बट इसमें से एक होने वाला था कैश लेजर तो हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने चेंजेस एक्सेप्ट किया और अभी ये चेंज इफेक्टिव हुआ है। शायद जीएसटीएन पोर्टल पे भी शायद ये फॉर्म आया होगा, मेरे हिसाब से नहीं आया तो आना चाहिए 8-10 दिन में। तो ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि हम एक जीएसटीएन से दूसरे जीएसटीएन में, मतलब अंडर वन पैन कैश लेजर का बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं, क्रेडिट लेजर का नहीं कर सकते हैं, और एक कैश लेजर का अभी हुआ है चेंज। I feel fortunate enough कि मैंने ये सब चेंजेस जो रिसेंटली लाया हूँ, I contributed for that and it is, I hope it will help many taxpayer. So ये एक उसमें से एक चेंज है।
So credit ledger not possible. Cash ledger balance transferred can be transferred from one GSTN to another GSTN under one PAN. इंटरेस्ट पेबल, ये भी एक मैंने ये भी एक मुद्दा उठाया था कि इंटरेस्ट का जो लायबिलिटी होता है आईटीसी का, ये 24% है, काफी ज्यादा है। मैं 2017 से बोलता हूँ कि ये जो है ना, ये मुथूट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस वालों से भी ज्यादा है, 24%। इसके ऊपर भी मैंने हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम के अनुराग ठाकुर जी से डिस्कस किया था कि ये बहुत ज्यादा है आईटीसी का इंटरेस्ट। लोग चाहते हैं कि ठीक है गलती हुई है, हम इंटरेस्ट भरे, बट 24% आप मांगते हो, कितना ज्यादा है वो। गवर्नमेंट अंडरस्टूड दिस इशू एंड दे हैव रिड्यूस्ड इट फ्रॉम 24% टू 18%। और ये भी कब लगेगा, जब आपने आईटीसी को यूटिलाइज किया। सिर्फ आईटीसी लिया था, यूटिलाइज नहीं हुआ था, तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। यूटिलाइज किया है, जैसे कुछ केस में होता है ना, बहुत सारा क्रेडिट पड़ा होता है, 2-2, 10-10 करोड़ क्रेडिट पड़ा हुआ है। मेरे पास मेरे फ्रेंड का एक मुझे 2-4 दिन पहले फोन आया था, उनका एक म्यूजिक ऐप है, एक फॉरेन कंपनी है, उनके पास 100 करोड़ का क्रेडिट पड़ा हुआ है। कुछ होगा रीजन, वो छोड़ दीजिए क्यों पड़ा हुआ है। मान लो उन्होंने कुछ गलती से आईटीसी लिया है और उनको 6 महीने बाद समझ में आया है, तो इंटरेस्ट लायबिलिटी नहीं आएगी, बिकॉज यूज ही नहीं हुआ है, वो सिर्फ लिया था, अभी सिर्फ रिवर्स कर देंगे। तो ये भी एक वेलकम चेंज हुआ है लॉ में। रजिस्ट्रेशन रिलेटेड चेंज है। एक्सपोर्ट्स क्रेडिट टाइम कम है, तो इसलिए मैं प्रेजेंटेशन में, आप बाद में पढ़ लेना इसको, अब मैं इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर आता हूँ। हाँ, इंटरेस्ट का जो मैनर होता है ना कैलकुलेशन का, कि इंटरेस्ट कैसा कैलकुलेट किया जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अप्रैल मंथ की लायबिलिटी इस मंथ में दिखाएंगे, इस मंथ में पे करेंगे, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होगा, आईटीसी का इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होगा, तो ये भी रूल 88B में दिया हुआ है। अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि कैसे कैलकुलेट करना, तो आप इस रूल को देखिए, इन्होंने एक्सप्लेन किया इसमें से अच्छे से मैनर में, या मैंने टेबल में भी आपको बताया है। एक्सपोर्ट के रिलेटेड वैल्यूएशन का चेंज है। मैं थोड़ा सा टाइम कम इसलिए आगे जा रहा हूँ, बट इंपॉर्टेंट चीज आपको डिस्कस करूंगा। फ्रेंड्स, एक जो आपने ये वर्ड एग्जाम में भी आता होगा, बहुत डिफिकल्ट था रिमेंबर करने के लिए, शेड्यूल 2 में वर्ड है, एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम द एक्ट, टू टॉलरेट एन एक्ट, टू डू एन एक्ट। इसके ऊपर जीएसटी आता है नहीं, ये कंफ्यूजन था, बट ये एग्जाम में आपको, तो आप पढ़ते भी होंगे बहुत बार, ये याद भी नहीं रहता। एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम द एक्ट, टू टॉलरेट एन एक्ट, और टू सिचुएशन, और टू डू एन एक्ट। बराबर है? आपने पढ़ा है, आप में से किसी लोगों ने ये, किसी ने ये वर्ड? यस? नहीं? Have you read it any time? Agreeing to the obligation, ये जीएसटी में शेड्यूल 2 में एंट्री है। Yes, sir. यस। सो ये दोस्तों, ये एंट्री जितना आपको डिफिकल्ट रिमेंबर करना, उतना मेरे को आज भी है। 2012 में इस सर्विस टैक्स में आया था, जीएसटी में कॉपी पेस्ट हुआ, तब से इसके ऊपर कंफ्यूजन था। अभी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर थोड़ा क्लियरिफाई किया है। और एंट्री डिफिकल्ट सब लोगों की होती है, ये थोड़ा सा एबनॉर्मल वर्ड्स, एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम द एक्ट, टू टॉलरेट एन एक्ट, टू सिचुएशन, टू डू एन एक्ट। इसकी वजह से पिछले 10 साल में देखिए गवर्नमेंट कितना लेट है इस चीजों में। 2012 में सर्विस टैक्स में ये एंट्री ऐड हुई थी, जीएसटी में ऐसे कैसे कैरी फॉरवर्ड हुई। इस एंट्री का मीनिंग, इसके इम्प्लीकेशंस के ऊपर काफी कंफ्यूजन था 2022 में। अभी लास्ट मेरे हिसाब से जुलाई मंथ में इसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्लियरिफिकेशन इशू किया है, जुलाई अगस्त मंथ में। ये सर्कुलर मैंने आपको दिया हुआ है, इसकी समरी मैंने आपको यहाँ पे दी हुई है, किसके ऊपर जीएसटी आएगा, किसके ऊपर नहीं आएगा। जैसे सिंपल फॉर्म में बताता हूं मैं, नोटिस पे वगैरह होता है, जिसके ऊपर हम पिछले कई सालों से जीएसटी भरते थे। नोटिस पे मतलब एम्प्लॉय छोड़ के जाता है, टाइम पे नोटिस नहीं देता है, तो उसका एम्प्लॉय जो होता है उसकी सैलरी फॉरफिट करता है, तो उसके ऊपर जीएसटी इतने साल से कंफ्यूजन था, आता है नहीं आता है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज भरते थे, आज गवर्नमेंट 10 साल बाद बोल रही नहीं भरना है। उसके बाद हर एक कॉन्ट्रैक्ट में, हर एक बड़े बड़े कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट के, आप ऐसा करोगे, ऐसा करोगे, ऐसा करोगे, ऐसा करोगे, ऐसा करोगे, नहीं किया तो हम आपको इतना पेनल्टी लगाएंगे। तो वो जो पेनल्टी होती है ना एग्रीमेंट की, फॉर नॉट परफॉर्मिंग इन ए प्रॉपर वे, उसको लीगल टर्म में लिक्विडेटेड डैमेजेस बोला जाता है, तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आएगा नॉर्मली। डिसऑनर ऑफ चेक के कोई चार्जेस अगर आपके क्लाइंट आपके कस्टमर को लगाता होगा, तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आएगा। पेनल्टी फाइन इंपोज फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ, उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आएगा। टिकट बुकिंग का कैंसिलेशन चार्जेस होता है, उसके ऊपर आएगा। लेट पेमेंट चार्जेस है, आपने लेट पेमेंट दिया है, उसके ऊपर जीएसटी आएगा।
फोरक्लोजर, टर्मिनेशन ऑफ लोन, अपने पहले क्लोज कर, जैसे मान लो आप कहीं पे रेंट पे रह रहे हो, रेंट पे जगह ली हुई है, 2 साल का एग्रीमेंट है, आप 5 महीने पहले वैकेट कर रहे हो, एग्रीमेंट बोलती है कि अगर 5 पहले एग्रीमेंट कर वैकेट कर रहे हो तो आपको 4 मंथ का रेंट देना पड़ेगा, 5 मंथ का रेंट देना पड़ेगा, जो भी कुछ है, या 50% रेंट देना पड़ेगा, तो वो उस अमाउंट पे जीएसटी आएगा, अज्यूमिंग कमर्शियल प्रीमाइसेस है। ये एक रेसिडेंशियल ड्वेलिंग का एक रिवर्स चार्ज का चेंज आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे कि टैक्स पेयर उसका जो बिजनेस है वो कमर्शियल प्रीमाइसेस से भी करता है और रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस से भी करता है। जैसे मोस्ट ऑफ द सीएस का ऑफिसेस पुणे में रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस में है, शायद सातारा में भी होगा, बराबर ऋषिकेश? होगा आपके यहाँ पे? यस सर। शायद आपका ऑफिस भी रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस में होगा। नहीं नहीं नहीं, मेरा नहीं है, जस्ट एग्जांपल के तौर पे प्लान था। या फिर बहुत सारी कंपनी होती है उनका गेस्ट हाउस लेती है रेंट पे, या जगह लेती है रेंट पे जिसको गेस्ट हाउस करके यूज करती है। ऐसे सभी केसेस में रिवर्स चार्ज में जीएसटी रिसिपिएंट को भरना है, जो भी रजिस्टर्ड है। सो अज्यूमिंग कंपनी हैज टेकन अ गेस्ट हाउस, कंपनी बहुत बड़ी है, उनका बहुत बड़ा काम है, रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस उन्होंने फ्लैट पे लिया है रेंट पे, इतने दिन तक वो फ्लैट है, रेसिडेंशियल है, इसलिए वो एग्जम्प्टेड था, जीएसटी भरा नहीं जा रहा था। अभी गवर्नमेंट बोलती है कि ऐसे केसेस में कंपनियों ने रिवर्स चार्ज में जीएसटी भरना है। अंडरस्टूड? कोई सीए अगर उसका ऑफिस चला रहा है रेसिडेंशियल प्रीमाइस से, जैसे मान लो हमारा भी शायद रेसिडेंशियल प्रीमाइस से है, तो रेसिडेंशियल प्रीमाइस मतलब उसका कमर्शियल यूज है, तो क्या उसका क्या होगा? यस, उसके ऊपर रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी आएगी। आप आपके प्रिंसिपल को पूछ के देखिए समझिए उसका बिल्डिंग का क्या है। बहुत सारे अगर आप पेट एरिया में जाओगे तो सभी रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस में ऑफिसेस है, बट वो कमर्शियल बिल्डिंग नहीं है, तो रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी आएगी। अंडरस्टूड? सर क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा, इसके ऊपर अगेन 2 व्यूज है। ऑफिस है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्रेडिट मिलेगा। क्या अगर गेस्ट हाउस है तो मिलेगा? तो एक अपरेंट व्यू है कि मिलेगा, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अ बिजनेस पर्पस, बट छोटा सा एक 5% ऐसा डाउट आता है कि ये पर्सनल यूज तो नहीं हो रहा है, डिसअलाउड तो नहीं होगा सेक्शन 17(5) में, तो बट हम रिकमेंड करें क्रेडिट लीजिए, आगे जाके कुछ हुआ तो हम देखेंगे आगे प्रॉब्लम, अभी क्यों छोड़ना है उसको। और इसके ऊपर मैंने रिसेंटली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जीएसटी काउंसिल को रिप्रेजेंटेशन भी किया है कि काफी कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो क्रिएट हुआ है, कि इशू क्रिएट हुआ है, पूरे इंडिया में कंफ्यूजन है, क्रेडिट लिया जाए नहीं लिया जाए, आप इसको क्लियरिफाई कर दीजिए। आई होप गवर्नमेंट इसको सुनेगी और इसके ऊपर कुछ आगे एक्शन लेगी। सो रेसिडेंशियल का बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी लायबिलिटी भरना जरूरी है बाय रजिस्टर्ड रेसिपिएंट। सबसे इंपॉर्टेंट 1 अक्टूबर से ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो रहा है जिनका टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, सॉरी ज्यादा है, और जो इतने दिन तक ई इनवॉइस में नहीं थे। सो 1 अक्टूबर से ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो रहा है ऐसे टैक्स पेयर को जिनका टर्नओवर 2017 से 2022 तक 10 करोड़ से ज्यादा था कोई भी साल में, और अभी तक कोई इनवॉइस नहीं बना रहे थे ऐसे लोगों के लिए। तो ऐसे लोग अगर आपके कोई क्लाइंट है तो उनको अवेयर कीजिए इसके बारे में, क्योंकि उनको समझना जरूरी है। टैली या उनका अलग सॉफ्टवेयर उसमें चेंजेस करना जरूरी है, और मेरे हिसाब से अभी 15 दिन ही बाकी बचे, ओनली 2 वीक्स है रिमेनिंग, सो प्रिपेयर फॉर इट। अभी दोस्तों ये जो हमने 3B में देखा, क्या ये चेंजेस बस इतनी ही है, इसके आगे कुछ हो सकता है? डेफिनेटली होगा। गवर्नमेंट ने रिसेंटली 3B के ऊपर रिकमेंडेशन मांगे कि 3B में आपको बताइए क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड है, और उसकी रिकमेंडेशन देने की आज की लास्ट डेट है। अगर आप चाहते हो कुछ चेंजेस देना है तो आप CBIC की वेबसाइट पे जाइए, और वहां पे कहीं तो ऑप्शन होगा रिकमेंडेशन प्रोवाइड करने का। आज ही 15 सितंबर ही उसका लास्ट डेट है रिकमेंडेशन 3B फॉर्म में प्रोवाइड करने का। आपको लगता है काफी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म हुआ है तो आप बता दीजिए उनको, ये बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया आपने। बोलने के लिए 1 पेज रिटर्न है। मुझे याद है फाइनेंस मिनिस्टर जी ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि वी आर कमिंग विद 1 पेज रिटर्न। अरे 1 पेज देखने को है, इसके पीछे पूरा एक ऐसे लिखना पड़ता है, ऐसे नहीं, बहुत बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है, और तब जाके 1 पेज रिटर्न की इंफॉर्मेशन आती है। बट गवर्नमेंट इसमें कुछ अच्छी चीज लाने की कोशिश करे, शायद अमेंडमेंट की फैसिलिटी हमें देने वाली है कि हम चीजों का अमेंडमेंट करें, नेगेटिव वैल्यूज को रिपोर्ट करें, उसकी डिटेल, उसका लास्ट डेट आ जाए।
फिर गवर्नमेंट उसके ऊपर कुछ एक्शन लेगी, समझेगी, 6, 7, 8, 10 महीने जाएंगे, फिर जीएसटी उसको 1-2 महीने लेगा, और शायद हमें मान लो अगले सितंबर मंथ में हमें वापस इस टॉपिक के ऊपर सेशन लेना पड़े, चेंजेस इन जीएसटी 3B. So with this I complete my session. So GST still at a very messy stage. In future I hope it will be a very nice tag which we are expecting. With this I complete my session. If you have any question, doubt, you can contact me afterwards. Also, if you want to get experience in GST, you can contact me, you can join, think of joining our office. So with this I complete my session. Thank you Pune Vikasa and Satara Vikasa for this opportunity, and thanks to all participants, 51 participants, for listening me. If you have any doubt, you can either ask. I think we are already over with the time. If Vikasa permit, or you can ask me afterwards also. Thank you. Yes, sir. If anyone has any doubt, they can ask sir right now itself. Moshmi ma'am, you are muted. I think we've already crossed the time. So if we can take, we can send a written question, probably it would be great. Sure. So I think I'll request Moshmi ma'am to give vote of thanks to the speakers. It was a real wonderful session, sir. All these complicated terms explained in a very, very, very simple manner, so that all our students could understand and implement the same in their offices. And thank you for your patience with our students. They've asked you so many questions, and you answered it in detail. So thanks a lot. Also, thank you for immediately agreeing to conduct this lecture on this very much required topic currently. Thanks a lot. Anytime any important matter on GST comes, the first name that we get that clicks is Swapnil sir, because he's the one who's an expert. He has an expertise knowledge, and he also has the skill of communicating it in a very simple manner to our students. So I think sir is the best faculty for GST. Thanks a lot, sir, for being here. Thank you, ma'am. Thank you for taking the efforts for the student. देखिए आपके लिए मैं तो आ रहा हूँ, और मैडम भी आ रही है उनके ऑफिस में सुबह सुबह. बट आप आपके दोस्तों के भी बताइए. 51 नंबर इज वेरी लेस इन कंपेयर टू पुणे. आई थिंक ये हमेशा 200-300 होना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, आप भी अवेयर क्रिएट करें. इंस्टीट्यूट अगर मेजर लेती है, उसके लिए सीए लोग भी, मैडम भी काम करते हैं, ऋषिकेश और सब लोग करते, तो ज्यादा स्टूडेंट आने जरूरी है. We'll upload this on our YouTube channel also. So anybody who has missed it, please see to it that you tell your friends that you can view it later on our YouTube channel as well. Thank you, everyone. Thank you, Rishikesh sir. Thank you, Moshmi ma'am. Thank you, Swapnil sir. Yes, sir. Swapnil ji, आप बोल रहे थे कुछ? नहीं. Thank you. Thanks. If anyone has any question, you can contact, or if you want to get an experience, you can always contact us afterwards. Thank you. Yeah. Thanks.